Mishal, we are live now. Okay. Should I start? जी स्टार्ट कर दें. Assalamu alaikum. I am Mishal Fatma from Sync National Research. मेरे साथ इस वक्त तमाम Sync National Research टीम के members मौजूद हैं और आज हमारी Sync Research series का दूसरा part है जिसमें we will talk about research designs, data gathering, smart objectives and the ethical considerations of research. इससे पहले कि we start the session, I would like to ask Javed Iqbal from King Edward Medical University कि वो recitation of the Holy Quran के लिए आ जाए. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. Jazakallah. अब हम I'll start with today's webinar और moving on. मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगी कि इससे पहले की जो Sync Research series थी उसमें हमने क्या डिस्कस किया in part 1. So we talked about topic selection and we talked about how to do a literature review. हमारी member Zaina Sajid ने बहुत ही detail में बताया था how you get started with the research, how you start with your topic selection, how you read up literature on your topic. और अभी हम in the next step हैं जिसमें we will see कि हमने topic select कर लिया है, हमने उस पर literature पढ़ लिया है, अब हमने आगे अपनी research conduct कैसे करनी है. So ये मैंने लिखे हैं on this slide all the points that are needed, all the steps that are needed in conducting a research. सबसे पहले we do topic selection, we've done that, we've already covered it. Literature review करते हैं हम, we've covered that as well. आज हम methods करेंगे, which is why they are highlighted in red. उसके बाद data analysis, article writing और publishing, बाद की जो हमारी research series के parts हैं, part 3, 4 and so on, they will discuss data analysis, article writing and publishing. आज जो मैं बात करूंगी that will be about the methods part of research. तो अब हमारे सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि what are our learning objectives of this session, कि what do we hope to achieve by the end of this session. सबसे पहले तो we will see कि आज का जो हमारा सारा फोकस है that is कि how to basically conduct a research. अब research conduct करने में we've got 4 components जिसमें हमारे पास सबसे पहले है कि we need to understand what research designs are. Research designs के बाद we need to understand कि हमारे पास किसी भी research को करने के लिए कुछ objectives होते हैं जिनको हमने fulfill करना होता है, जिनको हमने at all times under consideration रखना होता है. They are smart objectives and नाम बहुत सुना होगा but what they are, that's what we're gonna discuss. Data कैसे collect करना है और उसके बाद आपकी research की कुछ ethical considerations है जिन पे आपकी research को पूरा उतरना चाहिए, तो वो क्या है. Okay, सबसे पहले we will talk about research design. हमने topic select कर लिया, हमने उसके ऊपर literature पढ़ लिया. अब हमने ये देखना है कि हम जो research करना चाहते हैं उसको करें कैसे. तो उसके लिए we need a research design. अब research design के बारे में आप यूँ समझें कि it's like a blueprint. कि आपने अपने जैसे घर का नक्शा होता है that's a blueprint. आपको वो ये बताता है कि आपने अपना घर किस तरह से बनाना है. तो अब जो रिसर्च डिजाइन है वो यही बताएगा कि आपका टॉपिक है, आपने उस टॉपिक को कंडक्ट कैसे करना है, हाउ विल यू गो अबाउट डूइंग अ रिसर्च ऑन दैट टॉपिक. इससे मैं एक एग्जांपल दूंगी टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस का. थ्रू आउट द रिसर्च डिजाइन वाला पोर्शन आई विल कीप रिपीटिंग दैट एग्जांपल ताकि आपको समझ आए कि एक डायबिटीज मेलाइटिस वाले टॉपिक को आप किस तरह से उस पर रिसर्च कर सकते हैं, मतलब कि कौन से रिसर्च डिजाइंस के थ्रू यू कैन डू अ रिसर्च ऑन द टॉपिक ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस. मतलब मैंने डायबिटीज मेलाइटिस पे रिसर्च करनी है तो मैं ये भी कर सकती हूँ कि आई वांट टू सी कि डायबिटीज कितनी प्रेवलेंट है इन द जनरल पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान. दिस इज वन रिसर्च डिजाइन.
मैं ये देखना चाहती हूँ कि डायबिटीज मेलाइटिस क्यों कॉमन है इन द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, दैट विल बी अ डिफरेंट रिसर्च डिजाइन। मैंने कोई एक रिस्क फैक्टर उठा लिया कि जैसे ओबेसिटी की वजह से डायबिटीज मेलाइटिस होती है, मैं ये चेक करना चाहती हूँ, दिस विल बी अ डिफरेंट रिसर्च डिजाइन। तो कोई भी रिसर्च टॉपिक को हमने किस तरह से लेकर चलना है, उस पर किस तरह की स्टडी करनी है, दैट इज डिफाइंड बाय द रिसर्च डिजाइन। इसको हम हमेशा रिसर्च क्वेश्चन के फाइनलाइज करने के बाद रिसर्च डिजाइन को फाइनलाइज करते हैं कि पहले यू डिसाइड कि व्हाट यू वांट टू डू योर रिसर्च ऑन एंड देन यू डिसाइड हाउ यू वांट टू डू इट। अच्छा, अब रिसर्च डिजाइन के 3 बेसिक जो है वो क्वेश्चंस होते हैं जो कि रिसर्च डिजाइन आंसर करता है। सबसे पहले ये कि आपने डिसाइड कर लिया आपने डायबिटीज पे रिसर्च करनी है, आपको रिसर्च डिजाइन ये बताएगा कि हाउ विल द स्टडी बी कंडक्टेड। दिस फर्स्ट क्वेश्चन दैट रिसर्च डिजाइन आंसर्स, इट इज इन दिस रेड सर्कल, जो कि ये है कि स्टडी कंडक्ट कैसे होगी। मतलब कि आपने ये डायबिटीज पे तो रिसर्च करनी है, बट करेंगे कैसे। दूसरी बात इन दिस पर्पल सर्कल, दैट इज के व्हाट मीन्स विल बी यूज्ड, सॉरी इन दिस ग्रीन सर्कल, कि आपने व्हाट टाइप ऑफ डेटा विल बी कलेक्टेड, कि आपने डायबिटीज पे रिसर्च तो करनी है लेकिन आप किस तरह का डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं। मतलब डू यू वांट टू कलेक्ट द फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल्स, डू यू वांट टू सी कि डायबिटीज के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, डू यू वांट टू सी कि डायबिटीज जो है वो ओबेसिटी वालों में ज्यादा कॉमन है या नॉन ओबीज लोगों में ज्यादा कॉमन है, डू यू वांट टू सी डायबिटीज प्रेवलेंट कितनी है। तो बस आपने ये रिसर्च डिजाइन आपको ये बताता है कि आप डेटा किस तरह का कलेक्ट कर रहे होंगे। नंबर 3, दिस पर्पल सर्कल, आपको रिसर्च डिजाइन ये बताता है कि आपने जो डेटा कलेक्ट करना है, व्हाटएवर इट इज, इफ इट्स HbA1c, इफ इट्स योर ब्लड ग्लूकोज लेवल्स, इफ इट इज द प्रेवलेंस ऑफ डायबिटीज, तो आपने क्या मीन्स यूज करने हैं टू ऑब्टेन दैट डेटा। मतलब आप क्वेश्चंस पूछेंगे, आप इंटरव्यूज करेंगे, आप रिसर्च क्वेश्चनेयर बनाएंगे, तो ये सब चीजें आपके रिसर्च डिजाइन में आती हैं। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा व्हाट बेसिकली रिसर्च डिजाइन इज। किसी को कोई क्वेश्चंस हुए तो दे कैन आस्क एट द एंड ऑफ द सेशन। You can leave them in the Facebook comments, or we will address all of those at the end. अच्छा, अब रिसर्च डिजाइन हमने समझ लिया। रिसर्च डिजाइन, अब सारे रिसर्च डिजाइन हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है स्टूडेंट्स, तो ये समझने के लिए कि व्हाट काइंड्स ऑफ रिसर्च डिजाइंस आर रेलेवेंट टू अस, हमने कौन से समझने हैं टू कंडक्ट गुड रिसर्चेस एट आवर स्टूडेंट लेवल, उसके लिए हमें पहले बहुत जरूरी है कि हम ये समझें कि प्राइमरी के रिसर्च की क्या क्या टाइप्स हैं। तो मेडिकल रिसर्च की 2 बेसिक टाइप्स हैं, वी हैव गॉट प्राइमरी रिसर्च एंड वी हैव सेकेंडरी रिसर्च। अब प्राइमरी रिसर्च क्या होती है? तो प्राइमरी रिसर्च वो रिसर्च है जिसमें आप डेटा खुद कलेक्ट करते हैं, मतलब डेटा अभी एग्जिस्ट नहीं करता, आपने डेटा खुद जाकर कलेक्ट करना है। जैसे कि अगर मैं टाइप 2 डायबिटीज पे कोई रिसर्च स्टार्ट करना चाहती हूँ तो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, मैं खुद जाकर पेशेंट से डेटा लूंगी या मैं खुद क्वेश्चनेयर्स फिल कराऊंगी, तो दिस इज प्राइमरी रिसर्च। लेकिन अगर मैं ऐसे करूँ कि मैं गूगल स्कॉलर पे जाऊं और मैं देखूं कि टाइप 2 डायबिटीज पे कितनी रिसर्चेस हुई हैं, मैं उन रिसर्चेस के अंदर जो रिजल्ट्स हैं, जो डेटा उन्होंने लिया है, उसको उठाकर अपनी रिसर्च बनाऊं, जिसमें मैं ये कहूं कि अभी तक टाइप 2 डायबिटीज पे 12 रिसर्चेस हुई हैं जिन्होंने ये रिजल्ट्स दिए और मैं उससे कंक्लूजन डिराइव करूं। तो दैट इज अ सेकेंडरी रिसर्च। मैंने डेटा खुद नहीं कलेक्ट किया, मैंने किसी और का कलेक्ट हुआ डेटा लेकर अपनी रिसर्च बनाई, दैट इज सेकेंडरी रिसर्च। प्राइमरी रिसर्च, मैंने अपना डेटा कलेक्ट किया और उससे रिसर्च की। तो पहले मैं सेकेंडरी रिसर्च की आपको टाइप्स बताऊंगी बिकॉज हम उसको यहीं पे कंक्लूड कर देंगे, बट प्राइमरी रिसर्च को हम फर्दर स्टडी करेंगे बिकॉज दैट इज द रिसर्च दैट इज रेलेवेंट एट आवर लेवल। सो सेकेंडरी रिसर्च में हमारे पास फर्दर 2 टाइप्स हैं, मेटा एनालिसिस एंड सिस्टमैटिक रिव्यूज। हम पहले भी इन द फर्स्ट रिसर्च सीरीज का जो पार्ट 1 था उसमें ये क्वेश्चन किया गया था कि लिटरेचर रिव्यू और सिस्टमैटिक रिव्यू में क्या डिफरेंस है, जिसमें हमने बताया था कि लिटरेचर रिव्यू इज द नॉलेज दैट यू गैदर ऑन योर टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट। मैंने टाइप 2 डायबिटीज पे रिसर्च करनी है, पहले आई विल गो रीड लिटरेचर कि मैंने कि टाइप 2 डायबिटीज पे पहले कितना काम हुआ है, सो आई कैन आइडेंटिफाई सम काइंड ऑफ गैप एंड यूज दैट टू डू मोर रिसर्च। लेकिन सिस्टमैटिक रिव्यू में व्हाट हैपेंस इज कि आप टाइप 2 डायबिटीज पे 7 पेपर्स पढ़ते हैं, ठीक है, इट कुड बी एनी नंबर, आई एम गिविंग एन एग्जांपल ऑफ 7। सो आप 7 पेपर्स पढ़ते हैं,
उसके अंदर 4 पेपर्स ये बताते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज में चाइल्डहुड ओबेसिटी इज अ रिस्क फैक्टर, और 3 पेपर्स ये बताते हैं कि चाइल्डहुड ओबेसिटी इज नॉट अ रिस्क फैक्टर। तो अब अगर मैंने ऐसे किया कि मैंने बाय चांस से वही 3 पेपर्स पढ़ लिए जिनमें चाइल्डहुड ओबेसिटी वाज नॉट अ रिस्क फैक्टर, तो मैं तो ये कहूंगी कि भाई चाइल्डहुड ओबेसिटी इज नॉट अ रिस्क फैक्टर। लेकिन आपने वो वाले 4 पेपर्स पढ़े जिसमें चाइल्डहुड ओबेसिटी वाज अ रिस्क फैक्टर, तो आप ऑब्वियसली यही समझेंगे कि चाइल्डहुड ओबेसिटी तो शॉर्ट रिस्क फैक्टर है। तो सिस्टमैटिक रिव्यूज ये करते हैं कि इस तरह की सारी स्टडीज इन सबको एक शीट ऑफ पेपर पर ले आते हैं। दे टेल यू कि जो है 7 स्टडीज कंडक्ट हुई थी, 4 ने कहा कि इट इज नॉट अ रिस्क फैक्टर, ओबेसिटी इज नॉट अ रिस्क फैक्टर, 3 ने कहा कि ओबेसिटी इज अ रिस्क फैक्टर। तो अब बिकॉज मोर एविडेंसेस फॉर द ओबेसिटी, तो वी कंक्लूड कि ओबेसिटी इज अ रिस्क फैक्टर। तो ये इस तरह की डिफरेंट स्कैटर्ड नॉलेज को सिस्टमैटिक रिव्यूज कंसोलिडेट करते हैं। मेटा एनालिसिस डू द सेम थिंग, मेटा एनालिसिस में डेटा भी कोट करते हैं वो, जबकि सिस्टमैटिक रिव्यूज में ओनली रिजल्ट्स आर कोटेड। अब प्राइमरी रिसर्च जो हम करते हैं, प्राइमरी रिसर्च में भी फर्दर वी गॉट 2 टाइप्स। वीव गॉट द ऑब्जर्वेशनल स्टडीज जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं कि क्या क्या चीजें सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रही हैं, और एक्सपेरिमेंटल स्टडी में हम कोई ऑब्जर्वेशन लेते हैं, हम उसके अंदर कोई ना कोई इंटरवेंशन लाते हैं, एंड देन हम उसको दोबारा मेजर करते हैं। आई विल गिव एन एग्जांपल। हमने टाइप 2 डायबिटीज की बात की जिसको हम बार बार लेकर चलेंगे। आई एम गिविंग स्टिकिंग टू वन एग्जांपल ताकि समझना आसान हो, बिकॉज एक ही टॉपिक को हम मल्टीपल तरीकों से देखेंगे कि हाउ डिफरेंट रिसर्च डिजाइंस कैन यील्ड अ लॉट ऑफ डिफरेंट रिजल्ट्स फ्रॉम अ सिंगल टॉपिक। तो ऑब्जर्वेशनल स्टडी में मैं ये करूंगी कि आई विल सी कि पिंडी की पॉपुलेशन में डायबिटीज मेलाइटिस कितनी कॉमन है। तो आई एम जस्ट ऑब्जर्विंग, ना मैंने कोई ड्रग इंट्रोड्यूस कराई, ना मैंने कोई डाइटरी हैबिट्स में मॉडिफिकेशन इंट्रोड्यूस कराई, आई जस्ट ऑब्जर्व्ड, एंड जो मैंने ऑब्जर्वेशन की वो मैंने पब्लिश कर दी। लेकिन एक्सपेरिमेंटल स्टडी में व्हाट आई विल डू इज आई विल सी कि टाइप 2 डायबिटीज कितनी कॉमन है। उसके बाद मैं उन टाइप 2 डायबिटीज वाले लोगों को उठाऊंगी, उनको मैं कोई ड्रग दूंगी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने उनको इंसुलिन दी। उसके बाद इंसुलिन वाली इंटरवेंशन करने के बाद आई विल सी कि अब कितने लोगों की डायबिटीज इंप्रूव हुई है, या हाउ दे आर फेयरिंग, या व्हाटएवर आई वांट टू मेजर। मतलब मैंने कोई इंटरवेंशन की एंड देन आई कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज है, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज है। एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में भी आपने नाम सुना होगा, क्लिनिकल ट्रायल्स, ड्रग ट्रायल्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब काम एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में होते हैं। हम चूंकि स्टूडेंट्स हैं, वी डोंट हैव एक्सेस टू लैब्स जहाँ पे हम एंड नाउ हमारे पास इतनी अभी फिलहाल नॉलेज है कि वी कैन कंडक्ट एक्सपेरिमेंटल स्टडीज, वी कैन कंडक्ट क्लिनिकल ट्रायल्स, ना फंडिंग है, तो उसमें हम एक्सपेरिमेंटल स्टडी इसलिए हम स्टूडेंट्स नहीं कर सकते। सो एक्सपेरिमेंटल स्टडी के बारे में भी मैंने इतना ही बताना था। आई विल एक्सप्लेन ऑब्जर्वेशनल स्टडीज इन मोर डिटेल बिकॉज दीज आर द स्टडीज जो हम स्टूडेंट्स कर सकते हैं, व्हिच विल हेल्प अस बिल्ड आवर सीरीज। अच्छा, अब ऑब्जर्वेशनल स्टडी को एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पे 2 रिसर्च क्वेश्चंस रखूंगी, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि दोनों के दोनों जो क्वेश्चंस हैं दे आर ऑब्जर्वेशन। लेकिन काइंडली अपना माइक म्यूट कर दें। अच्छा, तो मैं ये देखूंगी कि जो ये मेरे पास 2 क्वेश्चंस हैं, दोनों के दोनों ऑब्जर्वेशनल हैं, बट इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। उसके अकॉर्डिंग मैं ऑब्जर्वेशनल स्टडी को आप लोगों को डिफरेंशिएट करना बताऊंगी। सो मेरे पास जो पहला क्वेश्चन है दैट इज कि आई वांट टू सी कि टाइप 2 डायबिटीज की प्रेवलेंस कितनी है इन द जनरल पॉपुलेशन ऑफ रावलपिंडी। ठीक है, आई जस्ट वांट टू ऑब्जर्व कि कितनी प्रेवलेंट है। दूसरा मेरे पास क्वेश्चन ये है कि आई वांट टू सी कि टाइप 2 डायबिटीज प्रेवलेंट क्यों है इन द जनरल पॉपुलेशन ऑफ रावलपिंडी। अब देखिए, मैंने दोनों में ऑब्जर्व ही करना है, सो दे आर बोथ ऑब्जर्वेशनल स्टडीज, बट दोनों में थोड़ा सा फर्क है। वन इज जस्ट चेकिंग द प्रेवलेंस and it is just describing the prevalence, and the other is analyzing कि क्यों diabetes mellitus prevalent है। तो keeping that in mind, हमारे पास जो सिर्फ prevalence चेक कर रही है that is a descriptive study, और जो उसकी डायबिटीज की कॉज भी एनालाइज कर रही है that is an analytical study। ओके,
हमने अगर सिर्फ डिस्क्राइब करना है कि कोई चीज कितनी कॉमन है या कितनी प्रेवलेंट है तो इट इज अ डिस्क्रिप्टिव स्टडी, बट अगर हमने एनालाइज भी करना है तो जस्ट बाय द नेम इट्स एन एनालिटिकल स्टडी। अब साथ ही इन दोनों को डिफाइन भी कर लेते हैं कि जो डिस्क्रिप्टिव स्टडी है इट डिस्क्राइब्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और आउटकम्स इन अ पॉपुलेशन विदाउट द यूज ऑफ अ कंपैरेटिव ग्रुप। मैंने जब देखा कि टाइप 2 डायबिटीज रावलपिंडी की पॉपुलेशन में कितनी प्रेवलेंट है तो मैंने ये नहीं देखा कि लाड़काना में कितनी प्रेवलेंट है या कराची में कितनी प्रेवलेंट है या लाहौर में कितनी प्रेवलेंट है। आई डिड नथिंग ऑफ द सॉर्ट। मैंने एक पॉपुलेशन उठाई और उस एक पॉपुलेशन के अंदर देखा कि कितनी प्रेवलेंट है टाइप 2 डायबिटीज। एनालिटिकल में व्हाट आई विल डू इज कि इट स्टडीज एंड एनालाइजेस एसोसिएशंस बिटवीन एक्सपोजर एंड आउटकम। फिलहाल आई जस्ट वांट यू टू फोकस अनटिल द आउटकम पार्ट। तो अब इसमें ये होता है कि एनालिटिकल स्टडी में हम ये देख रहे थे कि जो पिछला एग्जांपल था दैट वाज कि व्हाई इज टाइप 2 डायबिटीज प्रेवलेंट इन द जनरल पॉपुलेशन ऑफ रावलपिंडी। अब ये देखने के लिए मैं ऑब्वियसली दो ग्रुप्स लूंगी। एक मेरे पास वो ग्रुप होगा जिसमें टाइप 2 डायबिटीज होगी और दूसरा वो ग्रुप होगा जिसमें टाइप 2 डायबिटीज नहीं होगी। तभी मैं देख सकूंगी ना कि जिनको है उनको क्यों है और जिनको नहीं है उनको क्यों नहीं है। तो इस तरह से हमारे पास दो ग्रुप्स बन जाते हैं जो कि यहाँ पे मैंने लिखा कि यूजिंग केस एंड कंट्रोल ग्रुप्स। के जो केस है, केस हम डिजीज को कहते हैं, तो केस के जो डिजीज ग्रुप है उसमें क्यों आ रही है टाइप 2 डायबिटीज, और जो कंट्रोल ग्रुप है उसमें वो डिजीज फ्री ग्रुप है उसमें क्यों डिजीज नहीं है। तो वी विल एनालाइज दिस। अभी हम मजीद इनके एग्जांपल्स पढ़ेंगे और इनको मजीद डिटेल में पढ़ेंगे तो यू अंडरस्टैंड देम बेटर। ठीक है, अच्छा अब हम डिस्क्रिप्टिव स्टडी की बात करते हैं। मूविंग बैक टू आवर डायबिटीज एग्जांपल। अब डायबिटीज की डिस्क्रिप्टिव स्टडी करने के तीन तरीके हैं। या मैं ये डिस्क्राइब करती हूँ कि मेरे पास एक पेशेंट आया डायबिटिक फुट। डायबिटीज के अंदर एक कॉम्प्लिकेशन होती है डायबिटिक फुट। मेरे पास उसका पेशेंट आया और मैंने सर से पैर तक उस पेशेंट के ऊपर जितनी इंफॉर्मेशन थी उसके जो जहां जब वो डायग्नोज हुआ उसको क्या क्या रिस्क फैक्टर्स थे, उसको क्या ट्रीटमेंट दी, अब वो कैसे। अगर मैं इस तरह की पूरी रिपोर्ट लिखती हूँ अबाउट दैट पेशेंट तो दैट इज अ केस रिपोर्ट। केस रिपोर्ट हमेशा एक नए या अनयूजुअल केस ऑफ एन एग्जिस्टिंग डिजीज के बारे में लिखा जाता है। आप पेशेंट को डिस्क्राइब करते हैं सर से पैर तक, बट ओनली वन पेशेंट। गोइंग वन स्टेप फर्दर, आप अगर जिस तरह से मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी 5 पेशेंट्स ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस हैं, कलेक्शंस ऑफ सिमिलर केस रिपोर्ट्स और केस सीरीज। और एग्जांपल में ये है कि हमारे पास एक पेशेंट आया डायबिटिक फुट का, 2 दिन बाद एक और आया, 2 दिन बाद एक और आया, तो करते करते मेरे पास लेट्स से कि 7 या 5 पेशेंट्स जमा हो गए डायबिटिक फुट के। तो फिर मैंने इन पेशेंट्स के ऊपर इनकी हिस्ट्रीज, इनका डायग्नोसिस, इनके रिस्क फैक्टर्स, इनका प्रोग्नोसिस, इनकी ट्रीटमेंट सब कुछ इकट्ठी लिखी और मतलब कि डिफरेंट पेशेंट्स बट ऑफ सिमिलर डायग्नोसिस, इनको इकट्ठा लिखा और मैंने पब्लिश करा दिया। तो अब चूंकि ये सीरीज ऑफ केसेस थे तो दिस इज अ केस सीरीज। केस रिपोर्ट और केस सीरीज सिमिलर है बिल्कुल। केस रिपोर्ट में यू ओनली डिस्क्राइब वन पेशेंट, केस सीरीज में you describe multiple patients but of the same disease। अच्छा, उसके बाद अब लास्ट आ गई क्रॉस सेक्शनल। क्रॉस सेक्शनल इज द स्टडी दैट ऑल ऑफ यू ऑलरेडी नो अबाउट। ये वो स्टडी है जिसके बारे में रोजाना व्हाट्सएप स्टेटस लगता है, काइंडली फिल माय क्वेश्चनेयर। तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी वो होती है कि अब हम सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चनेयर्स का एग्जांपल लेंगे। वो क्वेश्चनेयर्स हमसे पूछते हैं कि आपके सोने की हैबिट्स क्या हैं, आपको बुरे ख्वाब तो नहीं आते, आप डिप्रेस तो नहीं है। वो जो सवाल करते हैं दे आर चेकिंग द प्रेवलेंस ऑफ स्लीप डिस्टर्बेंसेस, दे आर चेकिंग द प्रेवलेंस ऑफ डिप्रेशन एंड मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स। तो ये वाली जो स्टडीज है जो बस आप एक पॉपुलेशन में सर्टेन चीजों की डिस्ट्रीब्यूशन देख रही हैं, ये क्रॉस सेक्शनल स्टडीज है। क्रॉस सेक्शनल स्टडीज में अगर हम अपनी एग्जांपल लें डायबिटीज की, तो हमने देखना हो अगर कि हमारी सोसाइटी में टाइप 2 डायबिटीज कितनी प्रेवलेंट है, तो ये क्रॉस सेक्शनल स्टडी है। बिकॉज हमने इसी एट दिस पॉइंट इन टाइम हमने अपनी सोसाइटी का एक बिल्कुल हमने सब में देख लिया कि उनमें इस वक्त किस किस में टाइप 2 डायबिटीज है या नहीं है। तो मतलब कि वी टुक अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन कि इस वक्त व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स आर प्रेजेंट इन देम।
So that is a cross-sectional study. It's a super easy study that almost every student has encountered at least once in their student life, because everyone's putting them in their WhatsApp statuses, Facebook groups पे. This is a very common type of study. इसके हम pros and cons अभी discuss करेंगे, but I hope you understand it up until this point. अच्छा, अब केस रिपोर्ट और केस सीरीज के हम ना थोड़े से प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करेंगे कि व्हाई यू शुड कंडक्ट दीज और व्हाई यू शुड अवॉइड दीज. तो सबसे पहले लेट्स डिस्कस द प्रोज ऑफ दिस. केस रिपोर्ट्स, जैसे मैंने बताया कि आपने सिर्फ एक पेशेंट लेना है और उस पेशेंट को सर से पैर तक उसकी डिस्क्रिप्शन लिख देनी है, तो इट इज वेरी इजी टू डू. दूसरा, क्योंकि आपने सिर्फ एक पेशेंट को डिस्क्राइब करना है और चूंकि हम सबके सब जो है वी आर वेरी एप्ट एट डिस्क्राइबिंग अ पेशेंट, वी आर वेरी एप्ट एट डिस्क्राइबिंग और राइटिंग व्हाट इज एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ अस, तो उसमें इट इज वेरी इजी टू राइट. आपको बहुत, इट्स अ वेरी शॉर्ट आर्टिकल, आप वो इतना लंबा नहीं होता जितने बाकी आर्टिकल्स होते हैं. आपने सिर्फ पेशेंट की हिस्ट्री लिखनी होती है, उसी के डिजीज के बारे में थोड़ा सा लिखना होता है, अपनी उसकी ट्रीटमेंट के बारे में लिखना होता है और योर कंक्लूजन. तो इट्स वेरी इजी टू राइट. इट इज वेरी इनएक्सपेंसिव, क्योंकि आपने कुछ भी नहीं किया एक्सेप्ट फॉर जस्ट फॉलोइंग अ पेशेंट. आप अपनी वार्ड में जाएं या ओपीडी में जाएं और वहां पे आप कोई भी पेशेंट ले लें और आप उसकी सारी जो ट्रीटमेंट है उसके बारे में आप उससे यू आस्क देम क्वेश्चंस और यू गेट देम टू फिल क्वेश्चनेयर्स. तो आपका बेसिकली कोई खर्च नहीं आया, तो इसलिए इट्स वेरी इनएक्सपेंसिव एज वेल. Because it's so easy and because इसको analyze, आपको legit no analytical skills चाहिए for doing this. There is nothing, there is no analysis that needs to be made, so it is very good for beginners. Also because इतनी जल्दी हो जाती है, तो आपको एक बूस्ट मिल जाता है कि ओके मेरा एक पेपर पब्लिश हो गया, अब मैं अगले पेपर्स भी लिख सकती हूँ. It gives you a confidence boost that keeps you going. अब सवाल ये है कि अगर ये इतनी आसान है और इतनी अच्छी है, तो फिर सबके सब केस रिपोर्ट्स क्यों नहीं करते, सब क्रॉस सेक्शनल्स क्यों करते हैं, या इससे केस कंट्रोल्स एंड कोहॉर्ट्स, जिनका भी मैं आगे जिक्र करूंगी, डिफरेंट वो वाली रिसर्चेस क्यों करते हैं. यू मस्ट हैव हर्ड वेरी लिटिल ऑफ केस रिपोर्ट्स. तो व्हाट इज द रीजन? क्योंकि इसके जो कॉन्स हैं, अब हम उनके बारे में बात करेंगे. अच्छा, अब सबसे बड़ी बात ये है इसके अंदर जो मैंने रेड में लिखे हैं, पहले आई टॉक अबाउट दोज, कि जो केस रिपोर्ट्स है ना, हम स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली सीवी मैटर्स अ लॉट. तो केस रिपोर्ट्स सीवी में दे आर नॉट एज वैल्यूएबल एज द अदर रिसर्चेस. अब उसकी रीजन ये है कि एक तो जो केस रिपोर्ट्स हैं वो उनकी एविडेंस की जो क्वालिटी है ना वो बहुत लो होती है. द रीजन इज कि आप एक पेशेंट को डिस्क्राइब कर रहे हैं. आप ज्यादा से ज्यादा अगर आप केस सीरीज भी लिख लेते हैं तो आपने क्या 15 को डिस्क्राइब कर दिया, आपने 20 को डिस्क्राइब कर दिया. इट्स स्टिल टू लेस टू काउंट फॉर गुड क्वालिटी एविडेंस. दूसरा, क्योंकि एविडेंस कम होती है जिसका इम्पैक्ट कम होता है. जब रिसर्च के अंदर ये दोनों चीजें, एविडेंस और इम्पैक्ट कम हो, तो वो आपकी सीवी में इतना ज्यादा वेटेज होल्ड नहीं करती जितना बाकी रिसर्चेस करती हैं जिनकी एविडेंस की क्वालिटी ज्यादा है. दूसरा ये, which is even more important to it having less value in your CV, is कि case reports are very hard to publish. क्योंकि जो बहुत से आर्टिकल्स हैं लाइक BMJ, वो केस रिपोर्ट्स पब्लिश नहीं करते. केस रिपोर्ट्स पब्लिश होती हैं तो इन जर्नल्स जिनके साथ केस रिपोर्ट्स लिखा होता है, लाइक BMJ केस रिपोर्ट, दैट जर्नल पब्लिशेस केस रिपोर्ट्स. उसके अलावा क्यूरियस इज एन ऑनलाइन जर्नल जो कि केस रिपोर्ट्स पब्लिश करता है. But then again, it is very hard to get published in these journals with a case report. और उससे भी ज्यादा जो चीज मुश्किल है वो ये है कि आप केस रिपोर्ट के लिए आपका टॉपिक बहुत यूनिक होना चाहिए. आप कोलिसिस्टेक्टमी पे केस रिपोर्ट नहीं लिख सकते, आप सी सेक्शन पे केस रिपोर्ट नहीं लिख सकते. आपको केस रिपोर्ट लिखने के लिए एक यूनिक टॉपिक चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, हमने टाइप 2 डायबिटीज की बात की, तो मैं टाइप 2 डायबिटीज पे केस रिपोर्ट नहीं लिख सकती. हाँ, अगर मेरे पेशेंट को टाइप 2 डायबिटीज की कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो गई है जो कि बहुत अनयूजुअल है, तो तब मैं केस रिपोर्ट लिख सकती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पेशेंट को अगर टाइप 2 डायबिटीज के साथ साथ रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, या मेरे पेशेंट को टाइप 2 डायबिटीज के साथ साथ कोई ऐसी पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो गई है जो कि बहुत रेयर है, या फिर टाइप 2 डायबिटीज के साथ साथ उसको इंसुलिनोमा, मतलब इंसुलिन सिक्रीटिंग पैनक्रियाटिक आइलेट सेल्स का ट्यूमर हो गया, तो ये वो चीजें जो कि यूजुअली आपको नहीं देखने को मिलती.
तो तब आप इन पर केस रिपोर्ट लिखते हो, तो फिर जर्नल्स उनको पब्लिश करते हैं, वरना केस रिपोर्ट आप नहीं लिख सकते ऑन एवरेज टॉपिक्स। अब हम आ जाते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडी, द स्टडी दैट इज फाउंड ऑन एवरीवन्स व्हाट्सएप स्टेटस एटलीस्ट वंस इन देयर स्टूडेंट करियर। क्रॉस सेक्शनल स्टडी के बहुत से फायदे, और सबसे पहले हम उनको डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम उसके कॉन्स को डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब जो प्रोज हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडी के वो ये हैं कि द डेटा कलेक्शन इज वेरी वेरी इजी। आपने 5 मिनट में क्वेश्चनेयर बनाया, आपने अगले 1 मिनट में उसको व्हाट्सएप पे डाला, अगले 3 मिनट में वो ऑलमोस्ट सब व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर हो जाता है, वो फेसबुक पे शेयर हो जाता है, एंड द डेटा रिस्पॉन्सेज स्टार्ट टू रोल इन। तो इसलिए डेटा कलेक्शन आपकी बहुत आसान है, सुपर अफोर्डेबल है, क्योंकि आपको व्हाट्सएप पे स्टेटस डालने में, फेसबुक पे पोस्ट करने में कोई खर्चा नहीं आता, एंड आप यू डोंट इवन हैव टू लीव योर होम, आप घर बैठे बैठे डेटा कलेक्ट कर लेते हो। थर्ड जो इसका बहुत अच्छा एडवांटेज है दैट इज कि आई वुड लाइक यू टू फोकस ऑन दिस एप्पल, जिसका एक स्लाइस कटा हुआ है साइड पे। जो एप्पल के स्लाइस का टेस्ट होता है ना, वही पूरे एप्पल का टेस्ट होता है। इसी तरह से क्रॉस सेक्शनल स्टडी में आप जो सैंपल लेते हो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, आप उन कैरेक्टरिस्टिक्स को पूरी पॉपुलेशन के लिए जनरलाइज कर सकते हो। मतलब आपने एक क्रॉस सेक्शनल स्टडी की जिसके अंदर आपने ये देखा कि टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस इस जो है वो कितनी प्रेवलेंट है। आपने जितने लोगों ने आपका सर्वे फिल किया उसके अंदर 50% लोगों को टाइप 2 डायबिटीज थी। तो यू कैन वेरी इजीली से, अगर आपका सैंपल साइज इज बिग इनफ, इट इज representative enough, it is big enough, तो आप बहुत आराम से कह सकते हैं कि पिंडी की पॉपुलेशन में एटलीस्ट 50% पीपल आर डायबिटिक, क्योंकि आपका जो क्रॉस सेक्शनल सैंपल था उसके अंदर 50% लोग डायबिटिक थे। उसके अलावा आप मल्टीपल वेरिएबल्स एट अ टाइम पढ़ सकते हो, जैसे क्योंकि आपने एक क्वेश्चनएयर बनाया, आपने उस क्वेश्चनएयर के अंदर टाइप 2 डायबिटीज के साथ साथ लिखा कि आपकी एज क्या है, आपकी डाइटरी हैबिट्स क्या हैं, आपको चाइल्डहुड ओबेसिटी थी या नहीं थी, आप ये तीनों चीजें आपने एक ही क्वेश्चनएयर में पूछ ली, तो आपने इनडायरेक्टली डायबिटीज के अलावा बहुत से टॉपिक्स पे रिसर्च कर ली। मतलब आपने ये भी देख लिया कि पिंडी की जो है वो एवरेज, वो पिंडी में इस वक्त ज्यादातर लोग किस एज के हैं, बिकॉज ऑब्वियसली आपके पास सर्वे के अंदर अगर एजेस का एक मीन निकल आता है। तो आपने ये भी कहा कि टाइप 2 डायबिटीज जो है वो चाइल्डहुड ओबेसिटी के साथ एसोसिएटेड है, क्योंकि आपने चाइल्डहुड ओबेसिटी भी पूछी थी, आपने डाइटरी हैबिट्स पूछी थी, तो आप इस तरह से भी इसको लेके चल सकते हैं कि डाइटरी हैबिट्स और डायबिटीज का लिंक है। और एक थर्ड रिसर्च आप ऐसे कर सकते हैं कि इन तीनों चीजों को मिलाकर, एज, ओबेसिटी, डाइटरी हैबिट्स को मिलाकर डायबिटीज से रिलेट कर दें। मतलब आपने एक दफा डेटा कलेक्ट किया और आपने उस डेटा से 3 स्टडीज निकाली। तो दिस इज वेरी गुड इन दिस रिस्पेक्ट। दूसरा, फ्यूचर रिसर्च अपॉर्चुनिटीज आपको क्रॉस सेक्शनल स्टडी बताती है। मैंने जब डेटा फिल कराया तो मेरे जहन में ये बात बिल्कुल नहीं थी कि जो ज्यादा शुगर खाते हैं उनको टाइप 2 डायबिटीज होगी, लेकिन जब मेरा डेटा आया तो मैंने देखा कि जिनको डायबिटीज है उन्हीं के अंदर शुगर की कंजम्पशन भी ज्यादा है। तो फिर दिस टेल्स मी कि मैं फ्यूचर में या कोई और फेलो रिसर्चर फ्यूचर में ये रिसर्च कर सकता है कि शुगर और डायबिटीज का रिलेशन क्या है। तो अब फिर वही बात आती है कि अगर इतने फायदे हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडी के, तो फिर क्रॉस सेक्शनल स्टडी सब क्यों नहीं करते? एंड व्हाई डू पीपल ट्राई टू गो फॉर कोहॉर्ट्स एंड केस कंट्रोल्स? द रीजन फॉर दैट इज कि जस्ट लाइक केस रिपोर्ट्स, क्रॉस सेक्शनल स्टडीज के फायदे हैं और नुकसान भी। नुकसान सबसे पहले तो ये है कि आपको बहुत बड़ा सैंपल साइज चाहिए। आपने अगर पिंडी की पूरी पॉपुलेशन के लिए ये बताना है कि यहाँ पे डायबिटीज प्रेवलेंट है, तो आप 10 लोगों से पूछकर नहीं जनरलाइज कर सकते। आप 50 लोगों से भी पूछ के जनरलाइज नहीं कर सकते, आप 100 लोगों से पूछ के भी जनरलाइज नहीं कर सकते। आपको अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से बड़ा सैंपल साइज चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक छोटा सैंपल साइज लिया, लेट्स से मैंने 15 लोगों का सैंपल लिया, उन 15 लोगों में 10 लोगों को डायबिटीज थी,
तो मेरी परसेंटेज तो बहुत बड़ी आ गई ना, कि मुझे तो लगेगा कि ये तो फिर पिंडी में तकरीबन हर दूसरा बंदा उसको डायबिटीज है। लेकिन अब हुआ ये कि मैंने तो असल में सैंपल मेरा बहुत छोटा था। अगर मैंने इस तरह का सैंपल लिया कि मैंने जो 15 लोग लिए 15 के 15 में डायबिटीज नहीं थी, तो मैं तो कहूंगी पिंडी में डायबिटीज है ही नहीं। हालांकि एक्चुअली पिंडी में बहुत डायबिटीज थी, बस इत्तेफाकन मेरे 15 सैंपल के जो लोग थे उनमें डायबिटीज नहीं थी। तो इसलिए आपको एक बड़ा सैंपल चाहिए होता है ताकि यू कैन एडिक्वेटली रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन। दूसरा, आपका पॉपुलेशन ग्रुप डिफाइंड होता है। अगर आपने टाइप 2 डायबिटीज पे स्टडी करनी है तो आप ये नहीं कर सकते कि आपने एक जो आधे आपके लोग हैं वो 15 साल के हैं और उस आधे जो लोग हैं वो 38 के हैं और आधे जो है वो 80 प्लस है। तो आपकी पॉपुलेशन बहुत वेरिड है। इनमें तो डायबिटीज के मजीद रिस्क फैक्टर्स भी होंगे जो आपकी स्टडी इंक्लूड ही नहीं कर रही। तो आपकी स्टडी का जो एविडेंस जनरेट होगा ना वो बहुत गलत होगा। तो इसलिए आपने एक डिफाइंड पॉपुलेशन तक रहना होता है। अगर आपने पिंडी के लोगों में डायबिटीज पढ़नी है तो आपने सिर्फ पिंडी के लोगों में पढ़नी है। पिंडी के लोगों में भी आपने एक खास एज ग्रुप में पढ़नी है। तो इसलिए यू हैव टू स्टे लिमिटेड टू योर पॉपुलेशन ग्रुप। उस पॉपुलेशन ग्रुप में एडिक्वेट सैंपल साइज ढूंढना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से दिस इज कंसिडर्ड अ बिग नेगेटिव ऑफ क्रॉस सेक्शनल स्टडीज। दूसरी बात, अगर जो हमने ये देखा कि जो टाइप 2 डायबिटीज थी, डेटा मेरा आया और मैंने देखा कि टाइप 2 डायबिटीज में के साथ ना चाइल्डहुड ओबेसिटी बहुत एसोसिएटेड है। लाइक जिसको चाइल्डहुड ओबेसिटी थी उसको साथ साथ टाइप 2 डायबिटीज भी है। लेकिन ये जो क्रॉस सेक्शनल स्टडी बता रही है ना, ये मुझे एक लिंक तो बता रही है, लेकिन ये मुझे ये नहीं बता रही कि टाइप 2 डायबिटीज इज द रीजन ऑफ द ओबेसिटी या ओबेसिटी इज द रीजन ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द टाइप 2 डायबिटीज। कैसे? अगर उनको मुझे तो नहीं, मैंने तो सिर्फ एक क्वेश्चनएयर फिल कराया ना, मैंने पूछा कि आपको ओबेसिटी कब थी, ना मैंने पूछा आपकी डायबिटीज डायग्नोज कब हुई थी। तो अब आपको नहीं पता कि वो पहले उनको डायबिटीज हुई थी या पहले वो मोटे हुए थे। तो इट कुड बी कि मोटापे की वजह से डायबिटीज हुई या फिर डायबिटीज की वजह से मोटापा हुआ। तो इसलिए ये जो कॉज एंड इफेक्ट आपने रिलेशनशिप बनाना होता है ना, ये आप क्रॉस सेक्शनल स्टडी से नहीं बना सकते। इसके लिए यू नीड टू डू एन एनालिटिकल स्टडी। लास्टली, इसके अंदर एलिमेंट ऑफ बायस, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, हो सकता है आपने सैंपल में से वो लोग लिए हों जिनको वो प्रॉब्लम है ही नहीं जो आप असेस करना चाहते हैं, या फिर आपने सैंपल में सिर्फ वो लोग लिए हों जिनको वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो आप जनरलाइज नहीं कर पाते समटाइम्स। अच्छा, अब ये तो होगी क्रॉस सेक्शनल स्टडी की बात। अब हमने ये देखना है कि एनालिटिकल स्टडी, जिसकी हमने स्टार्ट में बात की थी, कि वो क्यों करते हैं। अब आपने देख लिया ना कि केस रिपोर्ट में भी और जो क्रॉस सेक्शनल स्टडी के जो लिमिटेशंस हैं, कि मतलब हम कॉज एस्टैब्लिश नहीं कर सकते, हमारे पास एविडेंस की क्वालिटी बहुत थोड़ी है, तो वो हमने किस तरह से प्रॉब्लम खत्म करना है। वो प्रॉब्लम हम खत्म करते हैं एनालिटिकल स्टडीज। एनालिटिकल स्टडी के अंदर आप कॉजेस and risk factors establish करते हैं for your research question. Type 2 diabetes is our research question for this session. और मैं ये देखना चाहती हूँ कि इसकी causes या इसके risk factors जो मेरे mind में perceived हैं कि it could be childhood obesity, it could be dietary habits, तो क्या वो वाकई causes हैं, ये मैं analytical study में देखूंगी। अब इसमें ना हम दो groups को compare करते हैं। अब वो दो ग्रुप्स कौन से हैं? I've hinted at them before, but अब एक मैं विजुअल क्यू दूंगी जिससे I hope you'll remember। एक हमारे पास होता है कंट्रोल ग्रुप, जो कि ये लोग हैं जो कि बिल्कुल आराम से खड़े हैं, मतलब ये दे आर डिजीज फ्री। और ये जिसको इन्होंने आउट ऑफ कंट्रोल ग्रुप है, ये हमारा केस ग्रुप है, जिसको प्रॉब्लम है, उनको डायबिटीज है। सो ये चीज याद रखना फॉर स्टडिंग अंडरस्टैंडिंग एनालिटिकल स्टडी बहुत जरूरी है कि हमने दो ग्रुप्स लेने हैं। एक को प्रॉब्लम है विच इज आवर केस ग्रुप, एक हमारा जिसको नहीं प्रॉब्लम, दैट इज द कंट्रोल ग्रुप, द डिजीज फ्री ग्रुप। अच्छा, अब ये भी एक सीधी सादी बात नहीं थी। एनालिटिकल स्टडी को भी आप तीन तरह से कर सकते हैं। एक कॉज एस्टैब्लिश करना फॉर सम प्रॉब्लम, यू कैन डू इट इन 3 डिफरेंट वेज। पहला वे ये है कि आप ऐसे करें कि टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट्स उठाएं, मतलब केसेस उठाएं, और उनसे पूछें कि क्या पुराने वक्तों में, मतलब लाइक पीछे जाकर
आपको क्या जो है बचपन में मोटापा था? Like, did you have type 2 diabetes? Did you have just childhood obesity? एंड अगर उनको थी या नहीं थी, उसकी बेसिस पे यू मेक योर कंक्लूजन कि या दोनों के दरमियान कोई एसोसिएशन है या कोई कॉज एंड इफेक्ट टाइप रिलेशनशिप है। मतलब पहले आपने केस उठाया टाइप 2 डायबिटीज वाला, पेशेंट उठाया और उससे रेट्रोस्पेक्टिवली क्वेश्चंस किए कि क्या आपको बचपन में मोटापा था या नहीं था। I've made these visual cues here in terms of these cartoons ताकि it's easier to remember. कोहॉर्ट स्टडी। अब कोहॉर्ट में आप ये करेंगे कि आप बच्चे लेंगे जिनको चाइल्डहुड ओबेसिटी है और फिर आप इनको फ्यूचर तक you'll follow them and see कि इनके अंदर टाइप 2 डायबिटीज डेवलप होती है या नहीं होती। इस तरह से आपको फॉर श्योर ये पता चल जाएगा कि ओबेसिटी क्या टाइप 2 डायबिटीज का कॉज है या नहीं है। थर्ड, अब केस कंट्रोल और कोहॉर्ट को ना याद रखना थोड़ा सा ट्रिकी होता है बिकॉज ये दोनों, इनमें सिर्फ एरो का फर्क है। एक में टाइप 2 डायबिटीज वालों को उठा के उनको पीछे ट्रेस करना है और एक में आपने बच्चों चाइल्डहुड ओबीस चिल्ड्रन को उठाकर आपने फॉरवर्ड ट्रेस करना है। तो हाउ आई रिमेम्बर दैट इज कि मैं सिर्फ केस कंट्रोल याद रखती हूँ, कोहॉर्ट इज ऑब्वियसली द ऑपोजिट। केस कंट्रोल में आप ये देखें कि केस का वर्ड पहले आ रहा है तो ऑब्वियसली जो डिजीज है ना, मतलब कि जो केस है वो पहले आएगा। तो मतलब टाइप 2 डायबिटीज पहले आ रही है एंड आप पीछे जाकर ट्रेस करते हैं कि रिस्क फैक्टर था या नहीं था, और इसी का ऑपोजिट कोहॉर्ट हो जाएगा। नीचे एक और भी हमें क्रॉस सेक्शनल नजर आ रहा है। अब वो क्रॉस सेक्शनल क्या है? सो जो कंपैरेटिव क्रॉस सेक्शनल है ना, इसमें आपने डेटा लिया जस्ट लाइक द क्रॉस सेक्शनल स्टडी, बट इसमें हुआ ये कि जब आपका डेटा वापस आया तो आपने देखा कि एक ग्रुप में कि कुछ लोगों को डायबिटीज है और कुछ लोगों को नहीं है, और जिनको है ना डायबिटीज उनको बचपन में ओबेसिटी थी, लेकिन जिनको डायबिटीज नहीं है उनको बचपन में ओबेसिटी नहीं थी, एज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय दिस मोटू बच्चा एंड दिस पतलू बच्चा। हमें एक ग्रुप में टाइप 2 डायबिटीज है, उनको बचपन में ओबेसिटी थी, ये हमारा एक ग्रुप बन जाता है, और एक जिनको टाइप 2 डायबिटीज नहीं थी और उनका चाइल्डहुड ओबेसिटी भी नहीं है, तो इनका दूसरा ग्रुप बन जाता है। और फिर आप दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स को कंपेयर करते हैं कि आपने क्रॉस सेक्शनल स्टडी, बट बिकॉज आपके 2 ग्रुप्स बन गए इसलिए इट बिकेम अ कंपैरेटिव क्रॉस सेक्शनल स्टडी। अच्छा, अब जस्ट लाइक हमने केस रिपोर्ट के प्रोज एंड कॉन्स पढ़े, क्रॉस सेक्शनल स्टडी के प्रोज एंड कॉन्स पढ़े, इससे ऊपर का जो लेवल है विच इज अ केस कंट्रोल स्टडी, अब हम उसके प्रोज एंड कॉन्स पढ़ेंगे। टाइप 2 डायबिटीज, आई विल जस्ट गिव अ क्विक रीकैप कि किस तरह से हमने केस रिपोर्ट दिया था। टाइप 2 डायबिटीज पे अगर मैं ये रिसर्च करना चाहती हूँ कि एक सर से लेके पांव तक एक पेशेंट को डिस्क्राइब कर रही हूँ और पेशेंट में डायबिटीज एंड अ डायबिटिक फुट, दैट इज अ केस रिपोर्ट। अगर मैं 5 पेशेंट्स को डिस्क्राइब कर रही हूँ तो दैट इज अ केस सीरीज। अगर मैंने सिर्फ एक प्रेवलेंस चेक की है ना पॉपुलेशन, that is of type 2 diabetes, that is a cross sectional study। अब मैं ये देखना चाह रही हूँ कि मैं अपनी ओपीडी में गई, मैंने वहां पे टाइप 2 डायबिटीज वाले 5-6 बाबा जी को लिया, और मतलब डिपेंडिंग ऑन व्हाटएवर द सैंपल साइज इज, मैंने उन बाबा जी को लिया और मैंने उनसे पूछना शुरू कर दिया कि आपको बचपन में चाइल्डहुड ओबेसिटी थी या नहीं थी। तो दिस इज द केस कंट्रोल स्टडी। इसके फायदे ये हैं कि इट इज वेरी वेरी क्विक। आपने जितना टाइम आपका क्रॉस सेक्शनल और केस रिपोर्ट इन सब पे लग रहा था ना, उतना ही केस कंट्रोल पे भी लगता है। आपने बस जाकर उनसे सवाल करने हैं एंड यू हैव टू राइट नोट देम डाउन। चीप, बहुत चीप है क्योंकि आपको कोई खर्चा नहीं आ रहा है इन आस्किंग दोस क्वेश्चंस फ्रॉम योर पेशेंट्स। आपको जो एविडेंस भी मिल रही है वो भी अच्छी एविडेंस है, बिकॉज यू कैन एक्चुअली एस्टैब्लिश एन एसोसिएशन बिटवीन व्हाट योर परसीव्ड रिस्क फैक्टर इज एंड योर प्रॉब्लम। रेयर डिजीजेस के लिए बहुत अच्छा है। द रीजन इज कि अगर एक डिजीज बहुत रेयर है तो आपने बस उसके आप ये तो नहीं कर सकते कि आप पहले वो एक्सपोजर्स निकालें, फिर उन लोगों से देखें, इंतजार करें किसी को वो डिजीज होगी फिर मैं जाके उसको अपनी रिसर्च में डालूंगा। आप सिंपली एक रेयर डिजीज वाले बंदे को लेते हैं या जितने भी आपको मिलते हैं, आप उन रेयर डिजीज वाले बंदे को लेते हैं, उनसे सवाल करते हैं, उनके जो उनके वो रिस्क फैक्टर्स जो परसीव्ड रिस्क फैक्टर्स हैं वो आपको उसके बारे में बताते हैं। आप पॉजिटिव उसके अंदर से रिलेशनशिप निकालते हैं कि हाँ ये वाले रिस्क फैक्टर्स हैं, इनकी वजह से ये रेयर डिजीज हुई होगी, एंड योर रिसर्च इज डन।
मतलब अगर कोई डिजीज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टू एनकाउंटर इन द सोसाइटी है ना, तो उसके लिए केस कंट्रोल इज अ वेरी गुड स्टडी, क्योंकि आपको डिजीज मिली हुई होती है, आपने बस उससे पीछे लोगों से क्वेश्चंस करने हैं। दूसरा, आप मल्टीपल एक्सपोजर्स पढ़ सकते हैं। जैसे मैं आई तो थी सिर्फ ये पूछने कि टाइप 2 डायबिटीज है आपको, तो क्या आपको बचपन में ओबेसिटी थी? तो ये पूछने के साथ साथ मैं ये भी पूछ सकती हूँ कि क्या आप ज्यादा रिफाइंड शुगर तो नहीं इस्तेमाल करते थे, आप स्मोकिंग तो नहीं करते थे? तो मैंने एक प्रॉब्लम के साथ मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स एक ही स्टडी में असेस कर लिए। दिस इज एन एडवांटेज ऑफ केस कंट्रोल। दूसरा, कोहॉर्ट और केस कंट्रोल को साथ साथ लेके चलते हैं, तो अगर आपने दोनों में कंपेयर करना है तो केस कंट्रोल इज मच लेस टाइम कंज्यूमिंग, बिकॉज आपने सिर्फ सवाल जवाब करके अपना डेटा बना लेना है। बट अगेन, अगर ये कोहॉर्ट से इतनी आसान है और गुड लेवल ऑफ एविडेंस भी दे रही है, तो फिर इस सब लोग केस कंट्रोल्स क्यों नहीं करते? क्योंकि इसके कोई नुकसान नहीं है। अब वो नुकसान ये हैं कि आपने अगर ये देखना है कि सोसाइटी में टाइप 2 डायबिटीज कितनी प्रेवलेंट है, तो यू कैन नॉट टेल विद केस कंट्रोल। अब हाउ ऐसे कि देखिए, आपने तो जो 10 पेशेंट्स उठाए थे, आपने तो डायबिटीज के ही उठाए थे, क्योंकि आपको उनसे पूछना था कि उनको ओबेसिटी थी कि नहीं थी। आप तो, अगर आपकी जो सैंपल साइज में तो 100% डायबिटिक से बनी हुई है, तो आप कैसे बता सकते हैं कि पॉपुलेशन में एक्चुअली डायबिटीज कितनी प्रेवलेंट है? क्योंकि आपके सैंपल में तो आपने खुद डायबिटीज वालों को ही चुना, बट आप ये तो नहीं कह सकते कि सोसाइटी में 100% डायबिटिक्स ही मौजूद हैं। ये तो बस आपने चुने ऐसे थे ना, तो इसलिए आप प्रेवलेंस और इंसिडेंस इन स्टडी से नहीं बता सकते। दूसरा, मैंने एक डायबिटीज वाले बाबा जी से पूछा कि आपको बचपन में मोटापा था या नहीं था। बाबा जी को क्या पता, 83 इयर्स के हैं, उनको नहीं याद कि उनको पहले मतलब पहले वो मोटे हुए थे फिर उनको डायबिटीज हुई, या उनको डायबिटीज पहले थी बाद में वो मोटे हुए। सो देयर आर सर्टेन थिंग्स जो इंसान रिकॉल नहीं कर पाता और फिर वो आपकी डेटा क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं। इसलिए रिकॉल बायस इज द टर्म दैट वी यूज जब डेटा कलेक्शन में, बिकॉज यू आर रिलाइंग ऑन योर सब्जेक्ट्स मेमोरी, इसलिए इट कुड बी कि मेमोरी इज फॉल्टी, तो आपका डेटा, आपकी एविडेंस इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं रहती। दूसरा, cause and association are not distinguished. What this means is कि देखिए, आपने बाबा जी से ये पूछा कि आपको चाइल्डहुड ओबेसिटी थी, बाबा जी ने कहा थी। आपने पूछा आप स्मोकिंग करते थे, बाबा जी ने कहा करता था। आपने उनसे पूछा उनको टाइप 2 डायबिटीज तो ऑब्वियसली उनको है, आपने एसोसिएशन बना लिया। आपने ये भी बना लिया कि या टाइप 2, ये जो दोनों चीजें थी ना, ये पहले से मौजूद हैं, ऐसा नहीं हुआ कि डायबिटीज हुई और बाद में इनको ये मसले सारे हुए। बट द थिंग इज कि इट कुड बी कि अभी टाइप 2 डायबिटीज डॉक्टर ने उनको नहीं बताई थी, लेकिन उनको पहले से थी, सब क्लिनिकल थी, और उसकी वजह से वो मोटे होना शुरू हुए। ये बातें आपको नहीं पता बिकॉज आप उस वक्त मौजूद नहीं थे। आपको एसोसिएशन पता चल गई, आपको क्रॉस सेक्शनल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस के साथ केस कंट्रोल ने एसोसिएशन बता दी, क्योंकि पहले आपको डाउट था कि क्या पता ओबेसिटी बाद में आई हो, क्या पता डायबिटीज बाद में आई हो। अब आपको ये श्योर हो गया है कि कहीं ना कहीं दोनों या सिमिलर जगह टाइम पे थी, या फिर एक ओबेसिटी पहले थी, डायबिटीज बाद में थी। बट अभी भी आपको 100% कंफर्म नहीं है। हो सकता है बाबा जी को डायबिटीज पहले से हो, उन्होंने चेक ना कराई हो, और उनको मोटापा बाद में होना शुरू हुआ हो, मोटापे की वजह से वो डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने बताया आपको शुगर है। इसलिए अगेन, कॉज इज स्टिल नॉट एस्टैब्लिश्ड। द लास्ट पॉइंट इज कि इट इज वेरी हार्ड टू फाइंड योर कंट्रोल ग्रुप। डायबिटिक्स आपने ढूंढ लिए, बट अब आपने इसको कंपेयर भी तो करना है किसी ऐसे ग्रुप से कि जिसमें आप बता सकें कि नहीं भाई, जो जिनको डायबिटीज नहीं थी उनमें भी चाइल्डहुड ओबेसिटी थी। इसका मतलब है कि चाइल्डहुड ओबेसिटी का कोई ताल्लुक नहीं है विद द डेवलपमेंट ऑफ डायबिटीज। या फिर आप कहें कि वाकई जिनको अंदर डायबिटीज नहीं थी उनको बचपन में चाइल्डहुड ओबेसिटी भी नहीं थी। तो मतलब यू नीड अ कंपैरेटिव ग्रुप जिसके अंदर सिवाय ये टाइप 2 डायबिटीज के बाकी सब कैरेक्टरिस्टिक्स
सिमिलर हो, ताकि यू कैन एक्चुअली एस्टैब्लिश दी कि ये वाली जो एसोसिएशन है इट डज एग्जिस्ट। मैं अगर मेरे केसेस डायबिटिक्स हैं ऑफ एज 70 इयर्स ओल्ड, तो जो मेरे पास कंट्रोल्स हैं उनकी भी एज, जेंडर, एवरीथिंग शुड बी द सेम एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि उनके अंदर डायबिटीज नहीं होनी चाहिए, उनको ऐसी कोई डिजीज नहीं होनी चाहिए जो कि केस ग्रुप में ना हो, केस ग्रुप में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जो कि कंट्रोल ग्रुप में ना हो, एक्सेप्ट फॉर द डायबिटीज पार्ट। नेक्स्ट, अब हम आते हैं कोहॉर्ट। कोहॉर्ट में हमने ये करना था कि हमने बच्चे लिए जिनके अंदर चाइल्डहुड ओबेसिटी थी और हमने इनको फॉलो किया कि इनके अंदर टाइप 2 डायबिटीज डेवलप होती है या नहीं होती। इसके प्रोज you can very easily guess from what I've told already before about the cons of case control. इसके pros ये हैं कि सबसे पहले मैं बात करूंगी pro number 2, clarity of temporal sequence. Did the exposure precede the outcome? इसका मतलब ये है कि अब मैं वाकई ये एस्टैब्लिश कर सकती हूँ बिकॉज मैं उन रिसर्च सब्जेक्ट्स को क्लोजली मॉनिटर कर रही हूँ कि इनके अंदर वाकई ओबेसिटी पहले हुई और डिजीज मतलब डायबिटीज बाद में आई। मतलब कि मैंने एक प्रॉपर सीक्वेंस एस्टैब्लिश कर लिया जिसको हम टेम्पोरल सीक्वेंस कहते हैं, कि द सीक्वेंस इन टाइम मैंने वो एस्टैब्लिश कर लिया कि वाकई ओबेसिटी पहले आई और डायबिटीज बाद में। उसके अलावा कोहॉर्ट का एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज है वो है कि मैंने जब इन बच्चों को एनरोल किया तो मेरी नीयत सिर्फ डायबिटीज पढ़ने की थी, लेकिन इनमें से 5 को हार्ट प्रॉब्लम्स डेवलप हो गए। अब वो तो मैंने अपनी स्टडी में दैट वाज नॉट माय इंटेंशन कि मैंने हार्ट प्रॉब्लम्स की डेवलपमेंट पढ़नी है, बट बिकॉज आई वाज फॉलोइंग दोस किड्स तो मैं एक से ज्यादा डिजीज पढ़ सकती हूँ जो जो उनमें डेवलप होगी। आई कैन स्टडी दैट, इंक्लूड दैट इन माय रिसर्च। उसके अलावा चूंकि अब मैंने एक इनके अंदर कुछ के अंदर डिजीज डेवलप होगी, कुछ के अंदर डिजीज डेवलप नहीं होगी। सपोज मेरा सैंपल साइज 10 था, 10 में से 5 में डेवलप हुई, तो आई कैन वेरी इजीली जनरलाइज इट कि भाई हाँ इन ओबीस बच्चों में 50% चांस है, 50% इंसिडेंस होता है ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस की डेवलपमेंट का, कि आप जब भी इन एवरी 10 किड्स 5 obese children will develop type 2 diabetes, क्योंकि मैं उनको फॉरवर्ड फॉलो कर रही हूँ। कईयों को डेवलप होगी, कईयों को डेवलप नहीं होगी। अच्छा, लास्टली आप जो है एक एक्सपोजर के, मतलब मैंने जिस तरह से पहली बात की कि आप मोर देन 1 डिजीज पढ़ सकते हैं, चाइल्डहुड ओबेसिटी था सिर्फ मसला, लेकिन जब मैं फॉलो अलोंग कर रही थी तो इस चाइल्डहुड ओबेसिटी की वजह से किसी को कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स हो गए, किसी को एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स हो गए, किसी को टाइप 2 डायबिटीज हो गया व्हिच इज आल्सो एन एंडोक्राइन प्रॉब्लम। तो मतलब कहने का ये हुआ कि उस एक एक्सपोजर से, एक चाइल्डहुड ओबेसिटी से आपने मल्टीपल उसके इफेक्ट्स देख लिए। फिजिकल हेल्थ पे क्या फर्क पड़ता है, एंडोक्राइन हेल्थ पे क्या फर्क पड़ता है, सेक्सुअल हेल्थ पे क्या फर्क पड़ता है। तो दैट कोहॉर्ट स्टडी अलाउज यू टू स्टडी ऑल ऑफ दोस बिकॉज़ द सब्जेक्ट्स आर अंडर योर डायरेक्ट मॉनिटरिंग। द क्वेश्चन इज अगेन द सेम, अगर इतनी फायदेमंद है तो फिर सबके सब लोग केस रिपोर्ट्स और क्रॉस सेक्शनल्स और ये केस रिपोर्ट्स, क्रॉस सेक्शनल्स और केस कंट्रोल्स को छोड़कर कोहॉर्ट क्यों नहीं कर लेते। अब उसकी वजह ये है कि देखिए एक बच्चा 12 साल का था, उसको डायबिटीज हुई 25 साल में जाकर, तो ये 13 साल तक स्टडी चलती रही। दिस इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग स्टडी। दूसरा, जितना इस पे टाइम लगेगा उतना इस पे खर्च ज्यादा आएगा। थर्डली, अगर मैंने एक डिजीज है जो कि 1 in 10,000 लोगों में होती है, 10,000 लोगों में से एक बंदे को होगी, मैंने सैंपल साइज लिया 50 लोगों का और मैंने उनको वो एक्सपोजर भी दिया जिसकी वजह से वो फलानी रेयर डिजीज होती है, बट देयर इज अ नेक्स्ट टू 0 चांस कि इनमें से किसी एक को भी रेयर डिजीज होगी। मैं 13 साल इंतजार भी करूंगी, क्या पता मुझे 50 इयर्स भी इंतजार करना पड़े और वो डिजीज भी नहीं होगी उनको, बिकॉज दैट डिजीज इज वेरी रेयर। मैंने पहले बताया था केस कंट्रोल करते हैं हम रेयर डिजीज के लिए, बिकॉज अब रेयर डिजीज का इंतजार करना बैठकर इज वेरी सिली। आप रेयर डिजीज वाला केस उठाएं और आप उसको
उससे सवाल करें पीछे उसके एक्सपोजर के बारे में, मतलब आप रेयर डिजीज पे केस कंट्रोल करें। आप कोहॉर्ट ना करें कि आप एक्सपोजर वाले लोग लेके बैठ जाएं और आप इंतजार करते रहें कि जब इनके अंदर कोई कैंसर डेवलप होगा तब मैं अपनी स्टडी कंप्लीट करूंगा। दूसरा अगेन इसी से रिलेटेड पॉइंट है कि अगर किसी डिजीज की बहुत लॉन्ग लेटेंसी है, जैसे कि कोई ऐसी डिजीज है कि जिसके मैनिफेस्ट होने में डेकेड्स लग जाती हैं, तो तब भी आप 20-20 साल बैठे रहेंगे और आपकी डिजीज होगी नहीं। लॉन्ग लेटेंसी डिजीज के लिए भी आप बंदा उठा लेते हैं जिसको वो डिजीज हो गई हो और आप उससे रेट्रोस्पेक्टिवली क्वेश्चंस करते हैं कि आप में क्या वजह हुई, व्हाट वर द कॉजेस, व्हाट वर द एक्सपोजर्स। दैट इज हाउ यू स्टडी दोस डिजीजेस। लास्टली कोहॉर्ट में जैसे मैंने बताया आपने फॉलो अप करना है। मैंने 13 बच्चे लिए जिनको चाइल्डहुड ओबेसिटी थी। एक जो बच्चा था वो यूके चला गया, एक कनाडा चला गया, एक का मुझसे फोन नंबर गुम हो गया, तो करते करते मेरे पास 10 रह गए। तो इस तरह से ना आपका जो फॉलो अप का लॉस है वो हो सकता है, बिकॉज इतने लंबा 13 साल तक किसी के साथ किसी को अंडर ऑब्जर्वेशन रखना इज नॉट वेरी फीजिबल। अच्छा, अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि मैंने ये इतने सारे रिसर्च डिजाइन के बारे में बताया, मैंने केस रिपोर्ट्स बताई, मैंने केस सीरीज बताई, क्रॉस सेक्शनल्स बताई, केस कंट्रोल्स बताए और कोहॉर्ट्स बताए। तो बेसिकली हमारा सवाल तो यही है ना कि स्टूडेंट्स को कौन सी रिसर्च करनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स को ये रिसर्च करनी चाहिए कि वो स्टार्ट करें विद द मोस्ट बेसिक। यू शुड नॉट स्टार्ट विद द कोहॉर्ट, यू शुड स्टार्ट विद द केस रिपोर्ट। आप केस रिपोर्ट से स्टार्ट करते हैं, इट इज वेरी इजी टू डू। आप अपनी सर्जरी की ओपीडी में जाएं या गायनी सर्जरी के वार्ड में जाएं या मेडिसिन के वार्ड में जाएं, बहुत से ऐसे केसेस होते हैं विच आर वेरी रेयर केसेस। फॉर एग्जांपल सर्जरी, हम द फर्स्ट टाइम दैट आई वेंट टू द सर्जरी ओपीडी एट माय हॉस्पिटल, मैंने एक केस देखा, द पेशेंट हैड नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस व्हिच इज अ डिजीज जिसमें फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया आपका गोश्त खाना शुरू कर देते हैं। अब दिस इज अ वेरी रेयर डिजीज, तो आप इसके ऊपर एक केस रिपोर्ट लिखिए। क्योंकि रेयर टॉपिक होगा, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, बट आपका पब्लिश हो जाएगा। जब आपका पब्लिश होगा तो आपको बूस्ट मिलेगा कि ओके दैट वाजंट सो हार्ड, और देन you'll get more confident कि भाई मैंने तो एक पेपर लिख लिया, अब मैं अगला भी लिख लूंगा, अब मैं इससे मुश्किल भी लिख लूंगा। सीढ़ी हमेशा नीचे से चढ़ेंगे, इट्स गोना बी इजियर टू क्लाइंब बनस्पत अगर आप इसको किसी ऊपर वाले स्टेप से स्टार्ट करेंगे। दूसरा, वंस यू डन योर केस रिपोर्ट, जो क्रॉस सेक्शनल्स जो सबके सब स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं कि मैंने व्हाई डिडंट आई से क्रॉस सेक्शनल स्टडी करें आप, व्हाई डिड आई से केस रिपोर्ट, हालांकि लोग ज्यादातर क्रॉस सेक्शनल्स कर रहे होते हैं स्पेशली इन फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर। उसकी वजह ये है कि आजकल ना आपको क्रॉस सेक्शनल स्टडीज इस तरह की मिलती हैं, अपने स्लीपिंग पैटर्न्स बताएं, आपको सिस्टिक एक्ने तो नहीं है, आपको जो है वो कोई मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर के बारे में सवाल होते हैं, विच तो होता ये है कि आप इनके ऊपर इतनी रिसर्चेस हो चुकी हैं, और दूसरा चूंकि एट स्टूडेंट लेवल हम इतने एक्यूरेट एंड वैलिड क्वेश्चनेयर्स इस्तेमाल नहीं करते, तो ये हमारी स्टडीज जो है ना वो हम इन पे टाइम भी लगाते हैं और ये हमारी पब्लिश भी नहीं होती। एक और हमारे पास जो आपने स्टडीज देखी होंगी, कैप स्टडीज कहते हैं उन्हें, नॉलेज एटीट्यूड प्रैक्टिसेस वाली स्टडीज। अभी कोविड-19 के दिनों में हैंड वॉशिंग पर बहुत ज्यादा कैप स्टडीज हुई, ये भी क्रॉस सेक्शनल स्टडीज हैं। आप किसी खास प्रैक्टिस की, फॉर एग्जांपल हैंड वॉशिंग की प्रेवलेंस चेक करें, लेकिन चूंकि दिस इज नॉट एन इम्प्रेसिव इनफ टॉपिक, इसलिए ये आपका टॉपिक पब्लिश नहीं होता, और जब पब्लिश नहीं होता तो फिर आप डिस्करेज होते हैं और आपका टाइम जाया होता है। इसलिए बट अगर आपने किसी बहुत अच्छे जो है वो टॉपिक पे क्रॉस सेक्शनल स्टडी करनी है, फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत सा डेटा है जो कि हम अपनी टेक्स्ट बुक में अंग्रेजों वाला डेटा पढ़े होते हैं। यूके में इतना कैंसर प्रेवलेंट है, यूके में हर 10th वुमन इज एनीमिक, बट हमारे सेटअप में इस तरह के प्रेवलेंस डेटा नहीं मौजूद, तो आप इन पर क्रॉस सेक्शनल स्टडीज कर सकते हैं। वंस यू डन योर क्रॉस सेक्शनल्स, फिर and you're in third year, you're in fourth year, फिर आप अपनी केस कंट्रोल्स पे आए। आप अपनी ओपीडीज में जाएं, वहां पे कोई डिजीज पकड़ें, उस तरह के रोजाना जाएंगे, 2 केसेस आज मिल गए, 3 केसेस कल मिल गए, उन पे स्टडी करें, उनसे रेट्रोस्पेक्टिवली उनके क्वेश्चंस पूछें एंड यूज दैट डेटा। अपनी नर्सेस के पास जाएं, उनसे कहें आपको पेशेंट की फाइल्स दें, उनसे रेट्रोस्पेक्टिवली डेटा उठाएं। तो डू केस कंट्रोल्स।
Once you enter into your PG training, you become a consultant, उसके बाद फिर आप cohorts करें और आप RCTs करें, मतलब clinical trials करें. So the best design for students is either a case report or a cross-sectional or a case control, depending on what your level of education is. मतलब किधर तक आप, what's your MBBS year. मैंने जो मीम लगाई है दैट इज जस्ट टू टेल के देखिए इवन जो ये है सेल्स पर्सन हु इज प्रेजेंटिंग समथिंग टू आवर एग्जीक्यूटिव, उसने भी कहा कि मैंने जो एक ऑप्शन चूज किया वो इनी मीनी माइनी मो मेथोडोलॉजी से किया, और उसको कंसल्टेंट कह रहा है कि आप ठीक है कोई ना कोई मेथोडोलॉजी होनी चाहिए, इट शुडंट जस्ट बी योर गट फीलिंग. दिस इज देयर टू एम्फसाइज कि आपका जो भी टॉपिक है यू नीड टू हैव अ मेथोडोलॉजी इन ऑर्डर टू प्रॉपर्ली कंडक्ट इट. अच्छा, अब this is a slide which was also included in the Sync research series part 1. इसमें मैं ये बताऊंगी कि hierarchy of evidence क्या होती है. Hierarchy of evidence is कि हमने जितनी researches की थी, अभी हमने study designs पढ़े हैं, one is better than the other. Why? क्योंकि कुछ का level of evidence is better than the other ones. And इसी लिहाज से उनको publish करना is easier than the ones जिनकी evidence quality low है. आप देख सकते हैं सबसे नीचे हमारी केस रिपोर्ट्स आती हैं, इनका लेवल ऑफ एविडेंस सबसे कम है, देन हमारी क्रॉस सेक्शनल्स है, देन वी गॉट द केस कंट्रोल्स, देन द कोहॉर्ट्स एंड देन द आरसीटीज. मतलब जैसे जैसे आपका लेवल ऑफ एक्सपर्टीज बढ़ता जाता है, जस्ट लाइक आई टोल्ड कि आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है, डू केस रिपोर्ट्स एंड क्रॉस सेक्शनल्स, यू कम इनटू थर्ड ईयर फोर्थ ईयर, डू केस कंट्रोल्स, ये इनके लेवल ऑफ एविडेंस बढ़ते चले जाते हैं. अच्छा, अब भाई हमने अपने मेथड्स में ना रिसर्च डिजाइन बना लिया. मैंने टाइप 2 डायबिटीज के बारे में सोचा कि मैं इस तरह से कर सकती हूँ, पेशेंट पे लिख सकती हूँ, उस पर क्रॉस सेक्शनल स्टडी कर सकती हूँ, प्रेवलेंस चेक कर सकती हूँ, कुछ टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट्स उठाकर उनसे उनके रिस्क फैक्टर्स के बारे में पूछ सकती हूँ, या फिर कुछ बच्चे इंडक्ट कर लेती हूँ जिनके अंदर रिस्क फैक्टर्स हैं और आगे जाके देखूंगी उनको टाइप 2 डायबिटीज बनती है कि नहीं बनती. मैंने चूज कर लिया कि आई वांट टू डू द केस कंट्रोल, कि मैंने टाइप 2 डायबिटीज के लोग उठाए और अब मैं इनसे जाके क्वेश्चंस पूछूंगी कि आपके अंदर फलाना फलाना रिस्क फैक्टर था या नहीं था. रिसर्च डिजाइन बना लिया. अब इसके अंदर मैंने डेटा कलेक्शन करनी है और फिर डेटा एनालिसिस करनी है. डेटा कलेक्शन मैं बताऊंगी, डेटा एनालिसिस सिंक रिसर्च सीरीज पार्ट 4 में डिस्कस होगी. अच्छा, अब डेटा गैदरिंग की टेक्निक्स. सबसे पहले तो वही चीज है जो हमें रोजाना तकरीबन व्हाट्सएप स्टेटसेस में नजर आती है, ऑनलाइन क्वेश्चनेयर्स. क्वेश्चनेयर्स आप प्रिंट भी करवा कर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, क्वेश्चनेयर्स डिस्ट्रीब्यूट करा सकते हैं. यू ओनली पुट डाउन के जो क्वेश्चंस आप पूछना चाहते हैं फ्रॉम योर सैंपल पॉपुलेशन, और वो पीपल एट देयर होम्स दे कैन फिल दोस क्वेश्चनेयर्स ऑनलाइन. नंबर 2, देयर आर पीपल जो कि जस्ट लाइक अगर आप ओपीडी में गए हैं किसी बाबा जी से या किसी अम्मा जी से, आपने कुछ फिल कराना है या किसी बच्चे से, और वो बच्चा वो क्वेश्चनेयर फिल नहीं कर सकता, तो आप 1-on-1 इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं. इंटरव्यूज क्वेश्चनेयर ज्यादा पर्सनलाइज्ड होता है, इसलिए डेटा कलेक्शन की क्वालिटी थोड़ी सी बेहतर होती है, क्योंकि आपको क्वेश्चनेयर आप मुझे व्हाट्सएप किसी ने कर दिया, मैं शायद पढ़ना चाहूँ, शायद ना शायद क्वेश्चनेयर फिल करूँ, शायद ना फिल करूँ, और इंटरव्यू में ये मेरे सामने बंदा बैठा होगा, आई विल टेल देम व्हाट दे वांट टू नो. Focus group discussions are a little bit above interviews. What they do is कि मैंने 5-6 बाबा जी इकट्ठे लिए और उनसे जिनसे मैंने पूछना था टाइप 2 डायबिटीज के बारे में, मैंने अकेले अगर मैं बाबा जी से पूछती तो शायद उनको वो मुझे ये ना बताते कि मुझे ना बचपन में मैं मोटा था इसलिए मुझे डायबिटीज होगी. लेकिन 5-6 थे, किसी एक ने वन वाज मोर विलिंग टू शेयर इंफॉर्मेशन, तो उसको देखा देखी दूसरे बाबा जी ऑल्सो गॉट लिटिल बोल्डर, एंड वो आपस में डिस्कशन के थ्रू मैंने बहुत सी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की. Patient files and records is also a very accessible and very easy and feasible means of gathering data. आप आपने सपोज टाइप 2 डायबिटीज पे हम रिसर्च कर रहे थे, मैं गई मेडिसिन ओपीडी में, मैंने नर्स से बात की कि मुझे प्लीज जो है पिछले 5 महीनों की पेशेंट फाइल्स दे दें, या कोई ऑनलाइन रिकॉर्ड है तो मुझे लेट मी एक्सेस दैट. मैंने वो रिकॉर्ड लिया, उसमें से जिन जिन लोगों को टाइप 2 डायबिटीज थी उनकी फाइल्स मैंने ली, और मैंने उनसे जो वेरिएबल्स और जो डेटा लेना था वो मैंने उन फाइल्स से ले लिया.
लास्टली डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, ये कोहॉर्ट में होती है कि मैंने 13 बच्चे इंडक्ट किए हुए थे, उनके अंदर जो जो चेंजेस आ रही है वो मैं खुद ऑब्जर्व करके खुद ही डॉक्यूमेंट करती जा रही हूँ। अच्छा, ये जो स्लाइड है ना, ये बहुत ज्यादा रेलेवेंट है इन ऑल द डेटा कलेक्शन टेक्निक्स एंड इन ऑल द रिसर्च डिजाइन। जब हम कोई भी डेटा लेने जाते हैं ना, जब हम कोई क्वेश्चनेयर बनाते हैं, तो अगर मैंने सिर्फ डायबिटीज की प्रेवलेंस चेक करनी है, मैं फिर भी अपने क्वेश्चनेयर में पेशेंट की एज, पेशेंट की रिस्क फैक्टर्स, उसकी डाइटरी हैबिट्स, उसकी HbA1c लेवल्स, उसकी कोई ड्रग्स तो वो नहीं ले रहा, उसको चाइल्डहुड ओबेसिटी तो नहीं थी, ये सब चीजें मैंने पूछनी। मतलब मैंने जितना मुझे डेटा चाहिए था ना, मैंने उससे ज्यादा डेटा कलेक्ट किया। The reason is कि just like this cartoon is saying कि we'll think of a use for it later, आपने डेटा ले लिया, आप दोबारा आपको सर्कुलेट नहीं कराना पड़ेगा some other questionnaire। मैंने इसी डेटा से ये रिसर्च भी निकाली कि टाइप 2 डायबिटीज के रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं। मैंने इसी से ये रिसर्च भी निकाली कि टाइप 2 डायबिटीज और टाइप के डायबिटीज को मैंने निकाल दिया, सिर्फ और सिर्फ वो डाइटरी हैबिट्स को चाइल्डहुड ओबेसिटी से लिंक कर दिया। मतलब दिस वाजंट इवन अ टॉपिक दैट आई वाज गोइंग फॉर, बट मैंने अपने डेटा से एक और टॉपिक निकाल लिया। दूसरा, जब मैं पेशेंट फाइल्स की तरफ जा रही थी, तो मैंने ऐसे किया कि डायबिटीज वाले पेशेंट के अंदर मुझे नजर आया कि मैं इसके ना कोमॉर्बिड्स भी लिख लेती हूँ। तो मतलब कि मैंने ये भी लिख लेती हूँ कि अगर किसी के साथ कोई डायबिटीज के अलावा उसको कोई प्रॉब्लम है तो वो भी लिख लेती हूँ। वो लिख लिया जब मैंने, अब मुझे अपनी ओरिजिनल स्टडी के लिए तो वो नहीं जरूरत, लेकिन मैंने एक और स्टडी उससे निकाल ली कि भाई डायबिटीज वालों में सपोज गैल ब्लैडर स्टोन्स बहुत कॉमन है, ये भी मैंने डेटा कलेक्ट जो किया था उसमें से इन्फ्रेंस निकाली। तो हमेशा आप डेटा मोर देन व्हाट यू इंटेंडेड फॉर कलेक्ट करें। अच्छा, अब जिस तरह से एवरीथिंग हैज सर्टेन रूल्स, रिसर्च टॉपिक सिलेक्शन के कुछ क्राइटेरिया थे, लिटरेचर रिव्यू का कोई तरीका था, रिसर्च डिजाइन को चूज करने के कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे, इसी तरह से डेटा गैदरिंग के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। और ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये आपने बार बार थ्रू आउट योर रिसर्च, नॉट जस्ट फॉर डेटा गैदरिंग, आप थ्रू आउट योर रिसर्च इन ऑब्जेक्टिव्स को कॉन्स्टेंटली अपनी रिसर्च को इन ऑब्जेक्टिव्स के अगेंस्ट एनालाइज करते रहते हैं। इन ऑब्जेक्टिव्स का एक एक्रोनिम है, दे आर कॉल्ड स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स। The S stands for specific, M stands for measurable, A stands for attainable या achievable, R stands for relevant and T stands for time based. मैं हर ऑब्जेक्टिव को अलग अलग डिस्कस करूंगी वेरी ब्रीफली, बट आई डिस्कस देम अलग अलग। अच्छा, अब specific. What specific basically means is quite evident from the meme that I've put here. It's के एक कार्टून जो है वो दूसरे को कह रहा है कि हम कुछ चलो मेजर करते हैं, और दूसरा कह रहा है कि ठीक है बताओ क्या मेजर करें, तो तीसरा वाला कहता है कि कुछ भी मेजर कर लेते हैं। ये डेटा कलेक्शन की अप्रोच नहीं होनी चाहिए। होना ये चाहिए कि अगर मैं टाइप 2 डायबिटीज का डेटा लेने गई हूँ तो मैं सिर्फ टाइप 2 डायबिटीज का डेटा लूँ। मतलब मैंने सपोज लेट्स से कि मैंने जाके पेशेंट फाइल्स उठाई, मैंने पेशेंट फाइल्स उठाई, बजाय इसके कि मैं सिर्फ टाइप 2 डायबिटीज वाली फाइल्स अलग करती, मैंने ये भी नोटिस, मैंने ये करना शुरू कर दिया कि इस वार्ड में 5 महीने में 1000 पेशेंट्स आए, 1000 पेशेंट्स का डेटा उठा लिया। नहीं, दैट इज नॉट स्पेसिफिक। आपने स्पेसिफिक डेटा कलेक्शन ऐसे करनी है कि 1000 में से सिर्फ 50 डायबिटीज के पेशेंट्स थे, तो आप सिर्फ 50 लोगों का डेटा उठाएं। तो बी वेरी स्पेसिफिक इन योर डेटा कलेक्शन। मेजरेबल, अब देखिए ये जो कार्टून है ना वो ये कह रहे हैं कि अगर जो जितना आप डेटा कलेक्ट किया है ना, फिर उसको बाद में इस्तेमाल भी करना है। आप जितने ज्यादा वेरिएबल्स बनाते जाएंगे आपको उतना ज्यादा आपका एनालिसिस मुश्किल होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने टाइप 2 डायबिटीज ली और मैंने ऐसे किया कि टाइप 2 डायबिटीज के बारे में मैंने ये भी देखा कि उसको स्मोकिंग थी, ये भी देखा कि चाइल्डहुड ओबेसिटी थी, ये भी देखा कि वो दिन में कितनी शुगर कंज्यूम करते हैं, ये भी देखा कितने फिजिकली एक्टिव हैं, ये भी देखा इनकी जेनेटिक टेंडेंसीज हैं कि नहीं है। बहुत से वेरिएबल्स ले लिए। जब बहुत से वेरिएबल्स ले लिए तो मेरे लिए वो मुश्किल हो गया। दूसरा ये कि अगर मैंने कोई वेग वेरिएबल्स उठा लिए, मतलब कि मैंने कोई इस तरह की चीज उठा ली कि जो कि जिसको डॉक्यूमेंट करना इतना आसान नहीं है, फॉर एग्जांपल कोई इस तरह की जेनेटिक बेसिस उठा ली हैं जिनके बारे में मुझे इतना नॉलेज नहीं है, तो दीज आर नॉट मेजरेबल डेटा गोल्स, तो यू शुड स्टीयर क्लियर ऑफ दोस।
सेकेंडली, दिस इज नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विद कि आप ज्यादा इंफॉर्मेशन उठाएं ताकि आप उसमें से ज्यादा रिसर्च जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकें. दैट इज डिफरेंट. अगर आप एक ही क्वेश्चनियर से मल्टीपल चीजें उठा रहे हैं तो दैट इज गुड बिकॉज दिस विल हेल्प यू लेटर ऑन. बट अगर यू आर समवन हु इज नॉट वेरी गुड एट segregating different variables के ठीक है मैं बीच में से सिर्फ ओबेसिटी देखना चाहती हूँ, जो बाकी वेरिएबल्स मैंने चेक किए हैं उनको मैं किसी और जगह यूज कर लूंगी. मैं वो नहीं करती, मैं सबको एक ही रिसर्च में घिच-मिच करती हूँ एंड आई एम नॉट वेरी एक्सपर्ट एट डूइंग द एनालिसिस, तो मेरे लिए मसला होगा. इसलिए यू शुड हैव वेरी मेजरेबल एंड डिस्क्रीट डेटा कलेक्शन गोल्स. अटेनेबल. अब ये देखेंगे दिस आई हैव यूज्ड memes to illustrate what I mean by the smart objectives because we're a generation who lives on and feeds on memes and we understand them better. तो देखिए हमारे पास जो इन द फर्स्ट कॉमिक ना, द गर्ल इज वेरी हैप्पी कि द नंबर ऑफ इयर्स इट्स गोइंग टू टेक फॉर हर टू गेट द डेटा इज 3 years, और फिर उसके बाद इंटरप्रेट करने में 2 साल लगेंगे और फिर उसको उसके बारे में लिखने के लिए 1.5 साल लगेंगे. This is not an attainable goal. This is absolutely unattainable. 3 साल में शायद वो 6 researches कर लेती, लेकिन वो उस एक डेटा के पीछे उसने इतना सारा टाइम लगा दिया. इसका मतलब है कि this is absolutely unattainable this is not achievable in terms of a goal. Secondly, attainable का आप इस तरह से भी लें कि आपने रिसर्च करनी है on the genetic basis of type 2 diabetes. डेटा आपको आल खान की लेबोरेटरी से मिलेगा, खुद आप रहते रावलपिंडी में हैं, ना आपके पास कोई जाने का तरीका है, ना आप आल खान में किसी को जानते हैं. So even though the data exists, the data is out of reach for you. So the data should be attainable. आपके गोल्स भी अटेनेबल होने चाहिए, मतलब ऐसा भी ना हो कि जैसे इसके साथ है कि वो 3 साल भी उसको लगे रहेंगे, और ऐसा भी ना हो कि डेटा इस जगह पड़ा है जहाँ पे आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते. रेलेवेंट. अब हमारा जो कार्टून है वो उस बंदे से पूछ रहा है कि कंफर्म द मेडन नेम ऑफ योर मदर्स अंकल सेकंड कजन. अब दिस इज कंप्लीटली इररिलेवेंट टू आवर डायबिटिक स्टडी. हमें पेशेंट के अपना नाम भी नहीं चाहिए हमें, क्योंकि ऐसे तो नहीं होता कि कलसूम नाम के लोगों को टाइप 2 डायबिटीज ज्यादा होगी और साइमा नाम की लड़कियों को टाइप 2 डायबिटीज नहीं होगी. तो आपने इररिलेवेंट चीजें नहीं पूछनी. आपने ये नहीं पूछना कि मतलब anything that is not relevant to your study, don't collect that data. इससे मैंने एक एग्जांपल दी थी अगेन कि मैंने टाइप 2 डायबिटीज के साथ साथ उनकी ये भी देख लिया, उनको कोई कोमॉर्बिड्स थे तो वो भी लिख लिए. दिस इज रेलेवेंट बिकॉज ये डायबिटिक्स के बारे में ही है. लेकिन अगर मैं किसी वो 1000 पेशेंट्स थे इन 5 months of that hospital, उन 1000 का डेटा ले लिया, irrelevant. That is not relevant to my study. मैं डायबिटीज पे कर रही हूँ, मुझे किडनी स्टोन्स वाले का डेटा नहीं चाहिए. अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट इज टाइम बेस्ड. हम जो स्टूडेंट्स रिसर्च करते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वी डू इट फॉर आवर सीवीज. हमें सीवी के लिए रिसर्च अपने ये जो CIP है, जो हमारी सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी है फॉर FCPS, उससे पहले हमें हमारी रिसर्च पब्लिश चाहिए. या अगर हम MLE दे रहे हैं या हम प्लैब दे रहे हैं तो हमें हमारी वहाँ एप्लीकेशन से पहले हमारी रिसर्चेस पब्लिश्ड होनी चाहिए. दैट इज व्हेन दे विल काउंट टुवर्ड्स आवर CV. वी कांट डू दैट अगर हमारी रिसर्च इतना टाइम ले ले कि हमारी उन एग्जाम्स की डेडलाइंस गुजर जाए. यहाँ पे लाइक इन आवर मीम जो है दिस वन एग्जेक्टिव जो कि सबको कह रहा है कि फाइनली हमारी रिसर्च कंप्लीट हो गई है, बट अफसोस ये है कि रिसर्च तो कंप्लीट हो गई है बट अब तक हम रिटायर भी हो गए, हमें उस रिसर्च का कोई फायदा नहीं है. तो बात ये है, आप वो रिसर्च करें जिसका आपको जो आप एक खास टाइम में कंप्लीट कर सकें. Cohort studies at our level not feasible. They take a lot of time and we don't have it. हम 13 साल नहीं बैठ सकते following a certain patient group. We can't do that. We can do that when once we're consultants. We can't do it right now. अच्छा, अब हमने स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से अपनी रिसर्च को डिजाइन भी कर लिया, डेटा कलेक्शन के तरीका भी निकाल लिया. बट जिस तरह से सब कामों का एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट होता है, उसी तरह से रिसर्च आल्सो हैज सम एथिकल कंसिडरेशंस दैट यू नीड टू कीप इन माइंड. सबसे पहली बात तो ये कि आपने कोई रिसर्च टॉपिक लिया,
आपने उस पर लिटरेचर रिव्यू कर लिया, आपने एक मेथोडोलॉजी डिजाइन कर ली, आपने इवन डेटा कलेक्शन की टेक्निक भी सोच ली। अब इसको एक्चुअली में परफॉर्म करने से पहले यू नीड टू गेट इट अप्रूव्ड। हर इंस्टीट्यूशन में देयर आर सम रिव्यू बोर्ड्स या एडिटोरियल बोर्ड्स जो कि आपकी स्टडी को अप्रूव करते हैं पहले बिफोर यू कैन कंडक्ट इट। अगर आपके इंस्टीट्यूट में कोई फॉर्मल डिपार्टमेंट नहीं है इन टर्म्स ऑफ अ रिव्यू बोर्ड, तो आपने जो टॉपिक चुना है उसके रेलेवेंट डिपार्टमेंट के एचओडी के पास जाएं। फॉर एग्जांपल हमने टाइप 2 डायबिटीज ली, तो मैं मेडिसिन के एचओडी के पास जाऊंगी और मैं कहूंगी कि सर दिस इज माय टॉपिक, this is my proposed study of research study design, this is my proposed data collection technique, please इसको approve कर। अब ये क्यों करना होता है? ये इसलिए करना है, ये बहुत जरूरी इसलिए बिकॉज नंबर वन वी आर जस्ट स्टूडेंट्स, हमें नहीं पता कि हमारी स्टडी फिजिबल है कि नहीं है। हमारे कंसल्टेंट हमें बताएंगे बिकॉज देव गॉट मोर एक्सपीरियंस के या योर स्टडी इज फिजिबल एंड इट्स गोइंग टू हैव एन इम्पैक्ट, आप ये स्टडी करें। उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन लानी है, सपोज मैंने एक ऐसा स्टडी डिजाइन चूज कर लिया जो कि मेरे लिए फिजिबल ही नहीं है, तो वो या मैंने वो इट इज नॉट रेलेवेंट टू दिस टॉपिक, तो वो भी हमारे जो रिव्यू बोर्ड है वो उसको करेक्ट करेगा कि नहीं आप इस रिसर्च के बारे में इस तरह से अगर अप्रोच रखें तो इट्स गोना बी बेटर। थर्डली, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर आपने पेशेंट फाइल्स लेनी है, आपने कोई ऐसे जैसे हमने टाइप 2 डायबिटीज की पेशेंट्स की फाइल्स उठानी है, उनका इंफॉर्मेशन लेनी है, तो फॉर दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ना वो डेटा हमने खुद कलेक्ट नहीं किया, वो डेटा उस कंसल्टेंट का था। मैंने अगर वो डेटा लेना है तो मैं अगर नर्स के पास जाऊंगी ना कि आप मुझे डेटा दे दें, तो वो मुझे कभी भी नहीं देगी। वो कहेगी आप पहले एक लेटर लेकर आए कि आपको वाकई परमिशन मिली है, बिकॉज द पेशेंट इंफॉर्मेशन इज कॉन्फिडेंशियल। तो जब आप एक रिव्यू, आप एक अप्रूवल ले लेते हैं ना, तो फिर आपको डेटा कलेक्शन की परमिशन भी मिल जाती है बहुत आराम से, क्योंकि डेटा आपका नहीं है। इट्स एथिकल कि जिसका आप डेटा ले रहे हैं, जिसका कलेक्ट किया हुआ डेटा ले रहे हैं, आप उनसे उनकी इजाजत मांगे। सेकेंडली, जब आप एक रिसर्च स्टार्ट करते हैं, रिसर्च सिंगल बंदा स्टार्ट नहीं करता, इट्स ऑलवेज अ टीम, मोर देन 2 पीपल। हमेशा टास्क पहले से डिवाइड करें। इट शुडंट बी कि एक बंदा सारे के सारे काम कर रहा है, बिकॉज दैट वे ये उस बंदे के साथ अनफेयर है। नंबर 2, जो लोग विदाउट डूइंग एनीथिंग अपना नाम लिखवाते हैं ऑनटू द रिसर्च पेपर्स, दैट इज नॉट एथिकल एंड दैट इज आल्सो इलीगल। थर्डली, आप जब किसी को अपनी स्टडी में रिक्रूट करते हैं एज अ सब्जेक्ट, तो आप उनसे उनकी परमिशन लें और उनसे कंसेंट लें। जबरदस्ती नो वन इज ऑब्लिगेटेड टू बी इंक्लूडेड इन योर रिसर्च। आप किसी से कोई डेटा ले रहे हैं, आप पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करें। आप उनसे जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, यू कांट टेक इट एंड देन गो इन योर टी रूम एंड डिस्कस इट, बिकॉज ये पेशेंट ने आपको आप पे ट्रस्ट करके आपको वो इंफॉर्मेशन दी है। थर्डली, फिफ्थली, सॉरी, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारे यहाँ बहुत ज्यादा ये माल प्रैक्टिस होती है, डेटा सही से कलेक्ट नहीं किया जाता। आपको सैंपल साइज 250 का चाहिए था, आपके सिर्फ 100 क्वेश्चनर्स फिल हुए हैं, आपने अगले 100 खुद फिल कर लिए। दिस इज इलीगल, दिस इज नॉट एथिकल। आप हमेशा डेटा टेक ऑल द पेन्स नेसेसरी टू गेट डेटा फिल्ड बाय रियल participants, by real subjects, और इवन एंटरिंग के दौरान मेक श्योर कि अगर आप किसी पेपर से ट्रांसफर कर रहे हैं ऑनटू एन SPSS शीट, ऑनटू एन इलेक्ट्रॉनिक शीट, तो आप उसके अंदर बी श्योर कि आप चीजें करेक्टली कॉपी करें, बिकॉज आपकी एविडेंस वरना मैनिपुलेट होती है। लास्टली, आपने किसी से कोई भी हेल्प ली है, गिव क्रेडिट वेयर इट इज ड्यू। हमारे यहाँ कॉलेज में खसूसन बहुत सी स्नेकिंग होती है कि कुछ लोगों ने किसी रिसर्च पे काम किया होता है, उनको क्रेडिट नहीं मिलता। फॉर एग्जांपल, आपने किसी से हेल्प ली इन राइटिंग योर पेपर और आपने एट द एंड जब उसको पब्लिश कराया तो उन लोगों को उनका नाम नहीं डाला। आपने किसी डिपार्टमेंट से या किसी कंसल्टेंट के डिपार्टमेंट से आपने डेटा लिया और आपने उनको एक्नॉलेज नहीं किया। आपने आपका कोई क्लास वाला जिसको स्टार्ट्स आती हैं, आपको नहीं आती, आपने उनसे डेटा एनालाइज कराया एंड देन यू डिड नॉट गिव देम क्रेडिट। दिस इज रॉन्ग। इस तरह दिस इज अनएथिकल एंड द नेक्स्ट टाइम आपकी कोई मदद भी नहीं करेगा। यहाँ पे भी आई पुट अ मीम के वन पर्सन इज सेइंग कि मैं सारी सर्विस खुद ही फिल कर लूंगा।
the woman is telling him कि नहीं, गलत बात, क्योंकि आप अपनी methodology कभी भी नहीं लिख सकते अगर आपने वो perform ही नहीं की। आपको क्या पता कि आपने किस तरह से डेटा कलेक्ट करना था जब आपने वो किया ही नहीं, आपने सिर्फ डेटा खुद से बनाया है। So in order to write your paper properly, you need to have done all those things जिनकी आप जिक्र कर रहे हैं। With that, we're done with the second part of Sync Research Series. Looking back, हमने topic selection discuss कर लिया, हमने literature review discuss कर लिया, जो कि ज़ाइना साजिद ने discuss किए थे दोनों बातें, और आज मैंने methods जिसके अंदर research design बना लिया, data collect कर लिया, और अब हम अपने review board के पास अपना topic with our done literature review, with our proposed plan, the research study design and our proposed data collection techniques, हम लेकर HOD के कमरे में पहुंच गए कि ये हमारा टॉपिक है, इस तरह से हमने लिटरेचर रिव्यू करना है, और ये मेथड्स हैं जिनसे हम रिसर्च कंडक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ तक हम आ गए हैं। इसके बाद डेटा एनालिसिस और आर्टिकल राइटिंग और पब्लिशिंग पर मजीद सीरीज आएंगी। तो दिस इज वेयर वी आर एट, एंड अभी आगे हमें मजीद जाना है। आपने क्या करना है? तो जितनी चीजें आपने ये सुनी है ना, बिफोर वी मूव ऑन टू द क्वेश्चंस, लेट मी जस्ट क्विकली टेल यू कि व्हाट आई वांट ऑफ यू आफ्टर दिस। जो रिसर्च स्टडी डिजाइन्स हैं ये भूल जाते हैं। Even हम भी हैं, every time that we're about to do some study, we go back to look at certain guidelines कि हमें ये study किस तरह से करनी है। तो Strobe is a place where जिनकी guidelines होती हैं for conducting observational studies, ये link दिया है मैंने, जिसके आप इस link को click करें, go read up on these. It's just कोई 2-3 pages का document है जिसके अंदर आपको observational studies conduct करने के लिए guidelines दी हुई हैं। जो बातें मैंने बताई हैं, I have set down the baseline for you to understand this, and every time that you conduct it, आप इन guidelines को दोबारा revise करेंगे and you'll conduct your study according to it. Please go do read them out. आज आपके लिए आज आपके mind में ये fresh होगा, तो you'll better be able to see, to learn and keep in memory how you need to go about doing observational studies. Let's have some questions now. अस्सलाम वालेकुम निशाद, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही है। Thank you so much. बहुत ज़बरदस्त, you've outdone yourself, mashallah, on this. And now we will have some question and answer sessions for the audience looking at us live from Facebook. Sahi. Just to summarize, good things, everything was great. जैसे आपने कहा कि diversity और specificity में आपने balance strike करना है. You don't have to go overboard with everything. Exactly. So with that we will जो पहला सवाल है वो महविश अनवर की तरफ से है. He's asking about a big enough sample for cross section study that can be generalized for the whole population. क्या figures होंगी उसकी? अच्छा, तो जब आप सैंपल साइज किसी भी स्टडी के लिए कैलकुलेट करते हो, उसका एक खास तरीका होता है, जो कि हमारा सिंक रिसर्च सीरीज का पार्ट 4 है, जिसमें बायोस्टैट्स पे बात होगी, तो वो आपको सैंपल साइज कैलकुलेट करना सिखाएंगे। फॉर नाउ आई जस्ट टेल यू कि व्हेनेवर यू स्टार्ट टू डू अ रिसर्च एंड यू डिसाइड ऑन कि आपने कितना सैंपल लेना है, तो देयर इज अ प्रॉपर फॉर्मूला जो कि आपको सिखाया जाएगा कि आप उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अपना सैंपल साइज कैलकुलेट करते हैं। Does that answer your question? Right. मेरे ख्याल से it does. Just adding up to what Mishal said, obviously we'll cover this in the biostat वाला सेशन में, और कोई एक खास वैल्यू नहीं होती सैंपल साइज की, that can be generalized over entire population. जैसे मिशाल ने कहा, एक बायस का फैक्टर हमेशा मौजूद रहता है, but we can certainly limit that factor when we have a good enough sample size through a scientific way. But we'll cover that later on. जवाद, आपके पास सवाल है मेरे ख्याल से। अस्सलाम वालेकुम, और ये सवाल है फ़ख्र माहिन की तरफ से, और ये पूछ रही हैं कि व्हाट इफ वी टेक अ जर्नल फिगर व्हिच वुड ऑब्वियसली नीड मोर टाइम बट एट द सेम टाइम इट विल बी जनरेटिंग अस अ लार्जर एविडेंस स्केल। वो पूछना है बेसिकली ये चाह रहे हैं कि अगर हम एक वैसी एक लार्जर फिगर ले लें तो उसमें हमें टाइम तो ज़्यादा लगेगा लेकिन हमें एविडेंस ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा, तो क्या हम ये कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ स्टिकिंग विद आवर ओरिजिनल सैंपल साइज?
अच्छा, सो इसके लिए ये है कि जितना आपका रिक्वायर्ड सैंपल साइज है, इफ यू स्टिक टू दैट इट्स मोर फीजिबल फॉर यू, नंबर वन, क्योंकि आपका जो रेलेवेंट कंक्लूजन है ना वो उसी सैंपल साइज पे निकल आएगा जो आपने एक साइंटिफिक फॉर्मूला से डिराइव किया है। दूसरा ये कि एक खास सैंपल साइज से ज्यादा आप सैंपल ले भी नहीं सकते, बिकॉज देन दैट बाइसेस योर स्टडी एज वेल। अगर इस पे कोई और ऐड करना चाहेगा तो प्लीज डू, बिकॉज बायोस्टैट्स और सैंपल साइज वाले एक्सपर्ट हमारे जवाद और मोहम्मद हमजा हैं। बिल्कुल, मेरे ख्याल से आई विल वे इन ऑन दिस के डेफिनेटली सैंपल साइज पे बात होगी हमारी दोबारा पे। वी हैव 2 सेशंस फॉर बायोस्टैट्स लेटर ऑन, तो सैंपल साइज काफ़ी डिटेल में कवर होगा। एंड आई वुड जस्ट से कि दिस इज नॉट राइट अप्रोच। जैसे हमने विशाल ने स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स की बात की, try to be smart about that data collection, because you don't want to complicate yourself कि मैं एक large enough sample size पे स्टडी कलेक्ट कर लूँ 800-900 पे, and then you find out कि मुझे सिर्फ 200 लोग चाहिए थे. That doesn't create a good impact on your study. Yeah. तो क्योंकि आपने feasible रहना है ना, you've got a very limited time. आपको 900 सैंपल लेने में 3 महीने लग जाने थे और 200 लेने में, जो कि आपका रिक्वायर्ड सैंपल साइज था और जिससे रिजल्ट जनरेट भी हो जाना था, वो लेने में आपको सिर्फ 2 वीक्स लगे। तो इट ड्रास्टिकली डैमेज्ड योर टाइमलाइन। तो इसलिए यू स्टिक टू जितना सैंपल साइज आपको चाहिए, इट्स गोना बी मोर feasible for you, it's also going to yield accurate results. बिल्कुल। नेक्स्ट सवाल महविश आपके पास है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मिशाल, आवाज़ आ रही है? या आवाज आ रही है। अच्छा मिशाल, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आमना शेख की तरफ से। वो पूछना ये चाह रही हैं कि जो हमारे ओपीडी में फाइल्स और रिकॉर्ड्स होते हैं, वो हमें किसी डिजीज के बारे में कैसे बताते हैं? अच्छा, तो जब आप जाके फाइल लिखते हो ना, तो फाइल के बाहर पेशेंट का डायग्नोसिस लिखा होता है। तो अगर जैसे आप टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट्स की फाइल्स लेने गए हो, तो आपको नर्स ना सारी की सारी फाइल्स इकट्ठी पकड़ाएगी। जब वो इकट्ठी पकड़ाएंगी तो आपने उसमें से फिल्टर करना है डिपेंडिंग ऑन फाइल के बाहर पेशेंट का डायग्नोसिस लिखा होगा कि इस पेशेंट को डायबिटीज है, इस पेशेंट को रीनल स्टोन्स है। आपने वो वाली फाइल्स उठा लेनी है जिन पेशेंट्स की डायग्नोसिस की जगह टाइप 2 डायबिटीज लिखा है। जब आपने वो फाइल्स उठा ली, तो फाइल्स के अंदर डिफरेंट पेजेस लगे होते हैं डिपेंडिंग ऑन एवरी हॉस्पिटल्स ओन पॉलिसीज। हिस्ट्री शीट्स होती हैं जिसके ऊपर पेशेंट की सारी डिजीज के बारे में लिखा होता है। पेशेंट की प्रोग्नोसिस मॉनिटरिंग शीट्स होती हैं जिसके अंदर उनकी जो उनको ड्रग्स मिल रही होती है उनके बारे में लिखा होता है। डिस्चार्ज शीट्स होती हैं जिसके ऊपर उनकी उस कंडीशन के बारे में लिखा होता है जब दे लीव द हॉस्पिटल। तो आप अपनी फाइल को आपने पिक कैसे करना है डिपेंडिंग ऑन द डायग्नोसिस व्हिच इज रिटन आउटसाइड ऑन द कवर, और अंदर से इंफॉर्मेशन कैसे उठानी है वो आपको कैटेगराइज्ड शीट्स के ऊपर मिल जाती है। हिस्ट्री की शीट अलग होगी, ड्रग्स की शीट अलग होगी, और उसके अंदर जो डिस्चार्ज नोट्स हैं वो अलग होंगे। सारा ऑर्गेनाइज्ड आपको उन पेशेंट फाइल से डेटा मिल जाता है। बिल्कुल, I hope that answers your question. बिल्कुल, होपफुली। अभी हम बात करेंगे, मेरे ख्याल से ज़ाइना साजिद के पास एक सवाल है। नेक्स्ट ज़ाइना। अस्सलाम वालेकुम मिशाल। वालेकुम अस्सलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आमना शेख की तरफ से, एंड शी इज आस्किंग एथिकल लेटर और परमिशन लेटर टू गेट द सैंपल, इज इट द सेम? अच्छा, so that depends on your मतलब आप जिस कंसल्टेंट के पास जा रहे हैं वो उस पर डिपेंड करता है। अगर आप किसी कंसल्टेंट के पास गए हैं और आपने दोनों काम एक ही लेटर के साथ कर लिए हैं कि आई नीड एथिकल अप्रूवल फॉर दिस स्टडी एंड प्लीज आल्सो ग्रांट मी परमिशन टू कैरी आउट द डेटा कलेक्शन, तो ये दोनों आप एक लेटर से भी कर सकते हैं, या फिर आप पहले अपना अगर कोई फॉर्मल रिव्यू कमेटी है जिसपे आप पहले टॉपिक अपना अप्रूव कराते हैं, तो वो आप फिर अलग से पहले आप अपना टॉपिक उनसे अप्रूव कराते हैं कि इज दिस कैन आई कंडक्ट इट एथिकली, कैन आई गैदर दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सब्जेक्ट्स, इट विल स्टिल बी विद इन द एथिकल नॉर्म्स। और फिर उसके बाद आप जब आपको एक एथिकल अप्रूवल मिल जाता है, फिर आप अपने रेलेवेंट कंसल्टेंट के पास चले जाते हैं कि सर मुझे हमारी इंस्टीट्यूशन की रिव्यू कमेटी ने यस सिग्नल दे दिया है फॉर कंडक्टिंग दिस रिसर्च। अब इस रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए मुझे
आपसे एक सैम्पलिंग का या वो डेटा कलेक्शन का अप्रूवल चाहिए बिकॉज मैंने आपके डिपार्टमेंट से कलेक्ट करना है, तो देन यू कैन डू इट सेपरेटली, बट दे कैन बी वन और द सेम थिंग डिपेंडिंग ऑन हाउ योर इंस्टीट्यूशन इज वर्किंग। मोस्टली इट कैन बी डन दोनों चीजें साइमल्टेनियसली इफ यू आर गोइंग टू द कंसल्टेंट, इफ यू आर गोइंग थ्रू सम अदर रिव्यू कमिटी फर्स्ट, तो यू कैन ऑल्सो डू इट डिफरेंटली। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। राइट, बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू मिशाल। मेरे ख्याल से नेक्स्ट सवाल, इफ आई एम नॉट गेटिंग द नेक्स्ट सवाल एट ऑल, रबिया के पास था वो सवाल। सो आई थिंक एक सवाल हमारे पास एक्स्ट्रा है, एंड दैट इज दी कि जैसे आपने बात की क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डाटा पे बात की, आपने टाइप ऑफ डाटा कौन सा लेना है, आपने क्वांटिटेटिव है क्वालिटेटिव। आई थिंक ही इज आस्किंग अबाउट दैट कि how can we compile qualitative data for interviews? Interviews may be long, and I think I would just weigh in on this question before letting you answer this. The fact कि obviously जो types of data को हम ज़्यादा डिटेल में बताएंगे when we are doing biostatistical analysis. Qualitative data की जो interviews से आप data लेते हैं, that is not an observational study, that is not even an experimental study, that is another type of research that is called a qualitative research. And qualitative research is a type of research that is up and coming in psychiatry. उसमें focus groups के साथ interviews लेके और उसको करते हैं. They have separate softwares. The scope of this discussion is not about that, but we will cover them once we get into our biostatistical class. Mishal, do you have anything else to add? I would add nothing more to this except what already Hamza has told कि qualitative data के बारे में हम बाद में बात करेंगे. It's gonna get more clear जब qualitative data और quantitative data के differences बताए गए in detail, because that way it would just be preceding something that we're already gonna discuss आगे जाकर. Wouldn't you agree? Yeah, बिल्कुल ऐसी बात है, बिल्कुल. और qualitative analysis is something that is something in up and coming, and it's not the scope of this research series is only for quantitative analysis. फिलहाल qualitative form of analysis, although easier, requires some other considerations. The methodology is different. The methodology for qualitative researches are totally different from quantitative researches. Like observational studies, experimental studies, ये quantitative types हैं. जो qualitative researches हैं, they don't require data typically. They require interviews and focused group sessions and stuff like that. उसका totally different scene है. वो हम बात करेंगे अगर if people are interested in qualitative analysis, we will talk about this, but only if there's interest about that. विशाल, एक और सवाल मेरे ख्याल से आया है, that is about the fact कि जो जैसे आगे बात हुई OPD के ऊपर, डाटा रिकॉर्ड्स के ऊपर डायग्नोसिस लिखी होती है, डेफिनेटली OPDs के अलावा भी कहीं से हम डाटा उठा सकते हैं फॉर पेशेंट्स. So OPD के अलावा हमने अगर पेशेंट्स का डेटा उठाना है तो we would have to go into the wards. Wards में अगर आप जा रहे हैं, like that is super easy for the students जिनको already clinical hours और clinical lessons start हो गए. अगर आपने ward से patient से one-on-one नहीं लेना तो आपको you would have to access the patient files, क्योंकि आपको accurate data और especially data in a chronological order files से ही मिलेगा. दूसरा, आपने अगर the data collection technique also depends on your research study design. अगर आपने interviews नहीं कर रहे, अगर आप one-on-one discussions नहीं कर रहे, आप patient files नहीं ले रहे, तो it could be कि आप directly observe कर लें. वो भी like we do in cohorts, कि आपके पास कुछ already patients हैं with certain risk factors. जब उनको disease होंगी, आप observe करके you're gonna keep collecting data. तो but अगर आपने patients के बारे में उठाना है तो अगर आपको questionnaire, interviews या patient files से ही लेना पड़ेगा. If someone would like to add on this, तो please do. बिल्कुल. किसी ने हमारी टीम से किसी ने बात करनी है सवाल जैसे कि what other forms or platforms or areas where we can obtain data easily? If someone has an opinion, do share with us. मेरे ख्याल से हमारे पास नहीं रहे और कोई सवाल, और that's done from my side, Vishal. ठीक है. फिर also अगर किसी के कोई टॉपिक सिलेक्शन या लिटरेचर रिव्यू से कोई क्वेश्चंस थे तो आई गेस वो नहीं आए, तो दिस मींस कि एवरीथिंग वाज प्रीटी गुड ऑन दैट फ्रंट.
तो let's just then we're gonna close this session. जाने से पहले I would like to tell कि जो हमारा next session है Sync Research Series का part 3 that's gonna be on 27 July, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आपने manuscript कैसे लिखना है. मतलब कि अभी हमने topic select कर लिया, literature review कर लिया, methodology अपनी design कर ली कि हम research conduct कैसे करेंगे. अब हमने research को लिखने बैठना है. So that would be explained by Mevish Kaniz. She's also part of our Sync National Research Team. Please do tune into that session. आप कोई feedback देना चाहते हैं about this whole series या session तो आप हमारी website पे दे सकते हैं. Other than that, you can access that on Facebook या Twitter as well. और अगर कोई और मज़ीद questions हुए about this research, तो Mevish will entertain them on 27 July after the end of her session. Thank you so much and take care. Allah Hafiz.